So very good afternoon, everyone. So we are here again for the second evening session by Dr. Didi Vichitra, who is the president of International Ashtanga Yoga Organization. And I request Dr. Vinamra Sharma, sir, assistant professor from Amity Institute of Indian System of Medicines, to kindly introduce Dr. Didi. Thank you so much. And by starting the prayer and introduce this speaker. Thank you. Thank you, ma'am. So we start with the prayer. Go hand together. Om Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashit Bhagavavi Shanti. Good evening. Namaste to all. So, it's my immense pleasure to introduce our guest, Dr. Didi Vijit sir. It's a part of our 6-day workshop. We are today is an evening session which is conducted by Dr. Didi Vijit sir. Dr. Didi Vijit sir has 32 years of experience as a clinical therapeutic yoga as well as the homeopathic consultant. Sir is the BHMS and MD in homeopathy. Sir has completed his MA in yoga and also has completed many yogic courses. Sir has a specialty in the Sudarshan Chakra meditation, clinical therapeutic yoga, new era pranayam, Om chanting, physical, mental, spiritual impact in disability. Sir is a founder president of Noida Homeopathic Medical Association. Sir is also heading a position of president International Ashtanga Yoga Organization. Sir have conducted many international national seminar and workshop. Sir has published so many research papers. Sir has contributed in the radio talk. Sir has contributed many online and offline workshop and the seminar. So with this, sir has a vast experience in the therapeutic yoga as well as the in the therapeutic practices of yoga. Sir, I welcome you, sir, for today's session. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, Amit Ministry. Thank you, Vinam sir. Thank you, madam. So let me start. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ओम के उच्चारण से. ठीक है. ओम का उच्चारण भिन्न भिन्न तरीके से होता है. आज आपको एक नया चीज बताते हैं. ओम शब्द में 3 देवताओं का वास होता है और ये परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ शब्द है. पर ब्रह्म परमेश्वर, इसलिए हर देवता के आगे ओम लगाया जाता है. ओम शब्द में क्योंकि त्रिदेव और त्रिदेवी का संगम है, इसलिए इसको हमें यूनाइट करके बोलना होता है. और इसमें 3 शब्द आते हैं. इसका नाम है ओ, उ और मा. ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और महेश का मा. परंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ओ से ही शुरू करना, जैसे मैं कर रहा हूं. बाकी कई लोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, सब सही है, और तो मेरा जो थोड़ा तरीका डिफरेंट है. अपने सांस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट में आपने ओ बोलना है, सेकंड पार्ट में ऊ बोलना है, थर्ड पार्ट में मा. तीनों को यूनाइट करके वो बोलना है, जिसमें कि 2 संधि के शब्द आएंगे. पहला होगा ओ, एक शब्द आता ओ, और एक संधि का शब्द आएगा ऊ. ओ से ऊ से मा में जाने में टोटल मिला के आपके 5 शब्द आते हैं. 2 संधि और 3 शब्द. मैं 3 बार एक बार उच्चारण करके बताता हूँ. मेरे साथ करें, आप मन से करें और खाली सुनिए.
सब लोगों ने सुना, उसके बाद अभी हम ज्ञान मुद्रा में बैठते, ध्यान मुद्रा में, उसके बाद प्रणाम मुद्रा और हाथों को फिक्शन करें, जीवनी शक्ति को अपने अंदर खींचे, क्योंकि ब्रह्मांड में विद्यमान है। उसको खींचने के बाद अपने हाथों को आंखों पर रखिए और open your eyes inside the darkness of vision and close your eyes and just move your hands. Slowly open your eyes. उसका तरीका ये होता है, आप नीचे से देखना शुरू करेंगे जमीन पर, इस तरह से देखते हैं और सामने स्लोली अपने आप से आपका आईज विजन क्लियर। तो सबसे पहले मेरे को जो सब्जेक्ट दिया गया था वो था पथ्य और अपथ्य भोजन। इस किस तरह से हम किस तरह का भोजन लें जो कि हमें योग की तरफ ले जाता है या योग में आसानी कर देता है या हमारे शरीर को और मन को हल्का रखता है, उसको बोलते हैं पथ्य भोजन। यानी कि जो योगा में हमें अग्रसर करता है, जो हमारे को प्रमोट करता है, वो भोजन पथ्य भोजन। दूसरा है अपथ्य भोजन। अपथ्य भोजन वो है जो हमारे को विघ्न डालता है योगा में आगे बढ़ने। वो 3 तरह के भोजन होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो। पहला है तामसिक भोजन, दूसरा है रासिक भोजन और तीसरा है आपका सात्विक भोजन। तो जो प्रमोटर्स है वो है सात्विक भोजन, लेकिन हर एक पल के लिए भोजन अलग अलग होता है। अगर आपने एक्टिवेट करना है आपने, उसके लिए आपको रासिक भोजन की जरूरत है। अगर आपने रेस्ट करना है तो तामसिक भोजन की जरूरत है। और अगर आपने सात्विक भोजन आपको लेना होगा तो वो आपको अग्रसर करेगा सत्वगुण। इस तरह से हम आपको बताते हैं भोजन किस तरह से लें, क्योंकि हम लोग योगी तो है नहीं कि हम लोग बिल्कुल सब चीज छोड़ दें। जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है, उन ग्रंथों में जो नाम दिए गए वो हमारे पास इस समय विद्यमान भी नहीं, और केवल एक ही चीज है, लाइट फूड बस। जो सुपाच्य भोजन है, जो इजीली खाया जा सकता है और अपने पेट को आप आधा भोजन से ग्रहण करके रखें और 1/4 अपना लाइट लिक्विड से, और 1/4 शुड बी एम्प्टी। दैट्स अ मेजर रोल ऑफ टेकिंग फूड। अब अगर आपने तीनों भोजन करने हैं और किस तरह से करने हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि हम लोग जीवन शैली हमारी इस तरह की है कि हम कहीं हिमालय में तो है नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, उसी हिसाब से खाली योग में रहना है। हम लोग पारिवारिक जीवन में, तो हम उस तरह का भोजन करना चाहते हैं जो सुपाच्य हो, इजीली हो और घर में इजीली अवेलेबल हो, नहीं तो गृह क्लेश बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते, सुबह सुबह उठ के हमें सात्विक भोजन करना होता है, क्योंकि सुबह का समय हमारा केवल योग के लिए में मेडिटेशन हम करते हैं। 2 टाइम होता है जो हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के लिए मेडिटेशन का टाइम होता है, क्योंकि उस समय जो हमारा तामसिक गुण और जो रासिक गुण है वो थोड़ा बैलेंस। अब सुबह हमने लिया सुपाच्य भोजन, जिसको बोलते हैं सात्विक भोजन। दोपहर में हमें थोड़ा लेनी चाहिए रासिक भोजन, जो हमारे को एक्टिवेट करता है, हमारे उत्तेजना प्रदान करता है और जो एनर्जी, ताकि हम सारे दिन की दिनचर्या बढ़िया से कर सकें। रात को हम तामसिक भोजन ले सकते हैं हल्का सा, जिससे हमें तमस आता है, यानी कि हमें नींद आती है, तो नींद बढ़िया आएगी। ये है मेरा अपना सोच, जो मैं अपने जीवन में सारे लोगों को बताता हूँ, और वो बहुत इफेक्टिव रहता है अगर इस तरह से खाना खाएं। अगर हम तामसिक भोजन दोपहर में कर लें तो हमको नींद आ जाएगी, और हम सुबह करेंगे तो हम योगा नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो इस तरह का हमारे को भोजन लेना होगा। दूसरा, फूड का जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से, सुबह उठ के 3-4 गिलास गर्म पानी या गुनगुना पानी, और उसमें नींबू डालें, शहद डालें, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
जो लोग ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं वो नमक नहीं लेना है, जो लोग डायबिटीज वाले हैं उन्होंने शुगर नहीं लेना, प्लेन वाटर ले सकते हैं। थोड़ा सा बूंद इसका लेमन जूस का डाल लें, ज्यादा नहीं, जिसको एसिडिटी ज्यादा होती है वो थोड़ा कम डालें, लेकिन जो नींबू की तहसीर है वो बेसिकली बेसिक है। उसके बाद जब भी आप खाना खाएं 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी से खाने के साथ 60 ml खाने के 2 या 3 घंटे बाद पानी, और खाने के बाद अगर आपको सोना है, इमीडिएटली सोना पड़ता है तो लेफ्ट साइड में। छोटी छोटी चीजें जो हमारे को बहुत ही इफेक्टिव। और इसके अलावा हम आपको बता दें, ये अदरवाइज बहुत लंबा है कुछ चीजें। अब हम आपको योग के बारे में बताएं। सबसे पहले आप योग शुरू करें अपने अंदर से, यानी कि अपने शरीर की देखरेख, अपने मन की देखरेख, अपनी बुद्धि की देखरेख, अपनी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग यह है अपना। मैं क्या हूं जिससे जुड़ रहा हूं? मैं हूं आत्मा, जो कि परम आत्मा से एक अंश आया, जो हमारे शरीर में आया, वही मैं बोलो। मैं का मतलब है आत्मा, और जो शरीर है वो अलग है। तो इस शरीर का देखरेख मैं कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी मनोभावना को बैलेंस करने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, ये 5 स्टेप्स हैं जो मैं सबको कराता हूँ। और पिछले से मुझे मेरी 35 ईयर्स हो गई इस मार्ग पर चलते हुए, और मैंने देखा कि आजकल जो योगा है वो योगा हो गया। जब से उसमें आ का डंडा लगा है तब से योग लुप्त हो चुका। बेसिक शब्द है योग, योग मीन्स योगा। बट जब से वो योगा हो गया, वो केवल दिखाने का हो गया, जो आसन हम दिखाते हैं, और जो कि हमारे को दिखाने के बाद योगाचार्य जितने भी हैं उसी से हमको आगे दिखता है। लेकिन योग वो है जो दिखता नहीं है, केवल महसूस करते। अगर आप अपना लेते तो आपका जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, सोच बदल जाती। और जो योग का मकसद है वो है एक शेल क्रिएट करना, अपने शरीर के चारों तरफ ऑरा क्रिएट करना, इस तरह का ऑरा जिसके अंदर कोई भी भेद ना पाए, जब तक कि आप खुद उसको एंट्री नहीं दें। जब तक आपका मन के चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बने कि कोई भी चीज उसके अंदर एंटर ना करे, तो आपका मन विचलित नहीं होगा। आपकी बुद्धि के अंदर जो एक कर्म संस्कार है, जो मेमोरी है, वो आपके अंदर ऐसा शेल क्रिएट करते कि जो आपकी मेमोरीज है वो धीरे धीरे कम होती जाए, जो कि आपको दिक्कत करती है, परेशान करती है, वो उस शेल से बाहर ना जाए, और नई मेमोरीज जो आपको डिस्कम्फर्ट देती है वो एंट्री ना करे। ये है मेन योग का असर। उसमें क्या करना हुआ आपको, जो मैंने अपना किया और अपना अभ्यास करने के बाद जो महसूस किया और जो मैंने इसका पूरा आनंद लिया, वो ये है, कई मेमोरीज ऐसी होती है किसी के प्रति जो हमें गुस्सा दिलाती, द्वेष दिलाती, और जिसकी शक्ल देख के हमारे को मन विचलित होता है, परेशान होता है, गुस्सा आता है, टेंशन होती है। वो सारी मेमोरीज लुप्त करनी है अपने बुद्धि के जो संस्कार है, जो कर्म संस्कार, जो एंट्री करते रहते और हार्ड डिस्क में हमारे ब्रेन में विद्यमान रहते, जिस वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है किसी के। उसको बिहेवियर को चेंज करना और सम स्थिति में रहने के लिए हम लोग योग करते हैं। अब दूसरा जो चीज है वो ये है, जो एंट्री करिए उसको एग्जिट नहीं देना, और जो बाहर से कोई ऐसी चीज आ रही है उसको फिल्टर करते हुए अपने अंदर रखो, ताकि अपना मन विचलित ना हो, बुद्धि परेशान, और हमारे जो डिसीजंस है एक्यूरेट। इस तरह का शेल बनाने के लिए योग का प्रावधान बहुत ही बढ़िया है, और ये मैंने पूरा अभ्यास करा है और अपने कई शिष्यों को करवाया भी है, और ये अद्भुत आवाज है। अब आपको एक और चीज बताएं, योगा टीचर स्टूडेंट होता है या उनके क्लाइंट्स, लेकिन योग गुरु के शिष्य, ये गुरु शिष्य परंपरा है जो सामने बैठ के ही दी जा सकती है।
और ये तो ईश्वर की कृपा है और हम विज्ञान की कृपा है जो इस समय हम आपके सामने महसूस करें और सारा कुछ आप सुन रहे हो। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको हम छोटी छोटी चीजों से आपको बताएंगे। अब ये 3 गुण मैंने बताए थे आप, सारा योग इन्हीं तीनों गुणों के चार पर। जिस दिन आपने 3 गुण अपनी 3 नाड़ी से जोड़ के फिल्टर करके इस्तेमाल करा, आपको हठ योग समझ, हठ योग है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का प्रभाव। इस तरह से करना कि न्यूट्रल होके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हुए आपको योग की तरफ। चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, सूर्य नाड़ी राइट नोस्ट्रिल। चंद्र नाड़ी के गुण है तमस को शांत करता है, सुलाता है। सूर्य नाड़ी का गुण है आप एक्टिवेट है, जागृति देता है। जब ये दोनों तमस गुण हमारा पूरा ना एक्टिवेट हो, ना हमारा रजोगुण एक्टिव, सूर्य नाड़ी, जब ये दोनों का एक्टिवेशन हमको चंद्र नाड़ी और तमस गुण सोने नहीं देगा और हमको हाइपर एक्टिवेट नहीं करेगा रजोगुण यानी कि सूर्य नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी का गुण नीचे लाना है, चंद्र नाड़ी का गुण ऊपर लाना है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे उसमें हम मध्यमा नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में चलेंगे, तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हमने सुना, प्रॉब्लम ये होती है जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा दिमाग चलता है और बहुत ज्यादा चलता है। इसका मतलब आपका रजोगुण एक्टिवेट है, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, उसको ठंडा कर नीचे लाना, और नीचे लाते लाते ऐसा ना हो कि तमोगुण बढ़ जाए और आप सो जाए, वो भी नहीं कर। जब ये दोनों गुण को बैलेंस करेंगे तब एक मार्ग निकलेगा सुषुम्ना नाड़ी का। उस सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव में हम लोग आनंदमय, ठीक है, जिसे आनंद के अंदर, उसको पाने के लिए हम सारे प्राणायाम, मैंने इसके करीब 18 प्राणायाम बनाए जो कि इतना इफेक्टिव है। अभी आज सुबह के किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आजकल कोरोना काल में हम क्या करें, मन विचलित है, मन परेशान है। केवल 3 ब्रीदिंग में विद इन नॉर्मल 3 मिनट्स, एक ब्रीदिंग में 1 मिनट जो योगी लोग हैं कर सकते हैं। 3 ब्रीदिंग के अंदर आपकी एंजाइटी न्यूरोसिस में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपका फियर कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगा, सोच बदल जाएगी। केवल गुण को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम आपको प्राणायाम का उद्देश्य बताते हैं और उसकी एग्जैक्ट व्याख्या बताते हैं। जो मेरा सबसे बड़ा, मैं बुक लिख रहा हूँ इस पर और कई सारे मैंने इसमें रिसर्च करी है पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं क्लिनिकल थेरेपेटिक योगा कराता हूँ, क्लिनिकल थेरेपेटिक प्राणायाम कराता हूँ और मेडिटेशन भी बहुत डीप हो जाता है। इसका नाम है सुदर्शन चक्र मेडिटेशन। जो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, जब तक इन तीनों गुणों का बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी ध्यान नहीं लगा सकता, पॉसिबल ही नहीं। और एक और चीज बताएं कि जब तक हमारी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होगी कि परमात्मा के गुण के बराबर हमारे गुण होंगे, तब तक हम परमात्मा का योग नहीं कर सकते। जीते जी अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करना कि हम परमात्मा के इक्विवेलेंट हो जाएं, तभी हम उसको टच कर सकते, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन जिसको हम योग करते हैं, ठीक है। जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग है। मरने के बाद अपनी आत्मा को बिल्कुल प्यूरिफाई करना इक्वल टू परमात्मा, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब वो भूल जाता है, मिल जाता है। ये है मोक्ष और वो है योग। तो योग से मोक्ष की तरफ जाने के लिए हमने अपने कर्मों को इतना शुद्ध करना होता है ताकि हमारा कर्माशय खत्म हो जाए, कर्म फल न्यूट्रल हो जाए, तब हम उस लायक। अब हम आपको बताते हैं कि प्राणायाम का एग्जैक्ट मीनिंग है। 2 मीनिंग होते हैं प्राणायाम के। प्राण मीन्स वाइटल फोर्स। प्राण जो है कब आता है हमारे शरीर में, ये भी हम आपको बताते हैं। ये आता है करीब करीब
12 सप्ताह प्रेगनेंसी के दौरान जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उसके बाद जब जाइगोट बनता है, उसके बाद धीरे धीरे बनता है, वो बदल के उससे ही चलता है सब कुछ। आफ्टर 3 years उसके अंदर 3 months यानी कि करीब 12 सप्ताह बाद उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। तब उसके गुणों के हिसाब से, माता के गुण के हिसाब से, उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से उसमें आत्मिक एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है कि कौन सी आत्मा किस भ्रूण में जाएगी, किस कोख में जाएगी, उसके हिसाब से वो एंट्री करता है। और प्राण का प्रवेश कब होता है? जब वो वम से यानी कि माता की कोख में जैसे ही बाहर आता है बच्चा, उसको माता से कट ऑफ हो जाता है और प्रकृति से वो गुण लेता है। पहला गुण लेता है वो प्राण। जैसे ही प्राण एंटर करता है, उसके अंदर सबसे पहले आती है चेत, तो वो रोना शुरू करता है, सांस लेता है, सांस के द्वारा उसके अंदर प्राण जो है प्रवेश करता है। प्राण पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो जब शरीर के अंदर एंटर करता है, तब जाके जागृति आती है, इसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। उसी के बाद ये तीनों गुण आ जाते। अब हमने प्राण खींच रहे हैं और आयाम, उसको दिशा देनी, प्राण प्लस आयाम। प्राण खींच के उसको डायरेक्शन देना और जहां पर हम चाहे वहां तक पहुंचाना है। अगर मैं चाहूंगा मेरी इस तर्जनी उंगली पर उस प्राण का संचार हो, तो इसी पर आएगा। इसकी पावर, पूरे शरीर की पावर इसी उंगली में। जिस पोर्शन में हम प्राण को बहा के ले जाना चाहे वहां जाना चाहिए, इसी को प्राण आयाम, दिशा दे। और दूसरा है प्राण प्लस यम, संयम का। उसको इस तरह से लेना कि हम कम से कम प्राण का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी आयु, ईश्वर ने हमें प्रॉपर नंबर ऑफ ब्रीदिंग दी है जो हमें प्राण का संचार करती है। अगर वो कम लेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी और वो होगी हेल्दी। तो ये दो उसके प्राण के परिभाषा है। तीसरा आपको बताएं, जो मेडिक्लेम होता है वो होता है इंश्योरेंस फॉर मेडिसिन, फॉर मेडिसिन एंड मेडिक्लेम आफ्टर योर एलमेंट, एंड योगा इज एश्योरेंस फॉर हेल्थ, सो टेक द एश्योरेंस नॉट इंश्योरेंस। तो अपने अंदर इतना बड़ा और सॉलिड शेल बनाए कि कोरोना आपको टच ना कर पाएगा, टच करे भी तो केवल बार बार से टच करके निकल जाए। उसके लिए बहुत सारे प्राणायाम है, अलग अलग सोच के लिए प्राणायाम चेंज हो जाते हैं। किसको कौन सा प्राणायाम जरूरत है, यही होता है क्लिनिकल साइंटिफिक थेरेपेटिक प्राणायाम, क्लिनिकल साइंटिफिक थेरेपेटिक योगा। हर एक प्राणी के लिए अलग, हर एक पेशेंट के लिए अलग। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको प्राणायाम सीखने का तरीका। 4 स्टेप्स। लर्न प्राणायाम फ्रॉम योर योगा टीचर एक्यूरेटली। सेकंड स्टेप, do your pranayam and yoga accurately. Second step. Third step is find out the mistakes in front of your teacher or group and filter them and make it accurate again. That's third step. After these third steps, when you are accurate, then you'll find the effect of this. तब आपको प्राणायाम का एग्जैक्ट इंपैक्ट मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिल सकता। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सिंपल है, परंतु इसके इतने रूप है, इतने रंग है, जैसे आप चाहें उसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। फिजिकल बेस्ड, मेंटल बेस्ड, स्पिरिचुअल बेस्ड, उसका रूप रंग चेंज हो जाए। इसको क्या चाहिए उसी तरह से वो चीज। अब हम आपको बताते हैं प्राणायाम का बेस। 4 तरह की ब्रीदिंग। वन इज चेस्ट ब्रीदिंग, सेकंड इज एब्डोमेन ब्रीदिंग, और थर्ड में आता है योगिक ब्रीदिंग, जो योगी लोग लेते हैं। यानी कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, चेस्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग और एब्डोमेन चेस्ट। 4 टाइप्स में। फर्स्ट ब्रीदिंग है चेस्ट ब्रीदिंग, जिसमें हम केवल चेस्ट को फुलाएंगे और चेस्ट को स्क्वीज करेंगे, पेट बिल्कुल नहीं है। सब लोग साथ कर सकते हैं और इसमें
कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी का क्वेश्चन था कि हम खाने के बाद योगा नहीं कर सकते। टोटली एज सच योगा अलग चीज है। जो मैंने बताया डंडा लगने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो गया, बट योग खाना खाने से पहले, खाना खाते खाते और खाना खाने के बाद हर पल कर सकते हैं। 24 आवर्स यू आर इन योगा, राइट। और मैं एक और चीज बताऊं, सबसे पहले एक लोग योग के बारे में समझिए। ये तो हो गया इस बारे में जो बुक्स में लिखा है। जो मॉडर्न लाइफ में योग है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने शरीर से जुड़िए। कौन जुड़ेगा? हमारी आत्मा अपने शरीर के साथ जुड़ी है, लेकिन एक टाइम आएगा जब को इसको विच्छेद करना है, शरीर को आत्मा से अलग करना है। इसको बोलते हैं वियोग। आत्मा का शरीर से वियोग ही योग बनाएगा परमात्मा से। जब आप यहां से छोड़ेंगे शरीर तभी तो आप ऊपर जाएंगे। इसको बोलते हैं वियोग ही योग है। या सब हमारे शास्त्रों में लिखा, बट हम इसको यूज नहीं कर पाते। बट सबसे पहले योग है अपने शरीर के साथ जुड़िए। अपने जो सराउंडिंग है, यानी कि जो सबसे पहले रिलेशन है, अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, उनसे जुड़िए। यह है योग। योग की परिभाषा है जुड़ना। क्या हम अपने बच्चों से, अपने मदर से, अपने पेरेंट्स से या अपने बच्चों से जुड़े हुए? यानी पहले जोड़ना सीखिए। दूसरी चीज, कई ऐसे रिलेशन है जिसमें हम लोग हमेशा जुड़ते नहीं है, जुड़ नहीं सकते हैं। उसको जोड़ने की प्रवृत्ति तैयार कर ली अपने अंदर। जैसे रिलेशन बताता हूं, सास बहू का रिलेशन, नंद भाभी का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, राइट? एम आई राइट? These are the relations which you need the most powerful योग। अदरवाइज घर में योग करने लायक ही नहीं रहेंगे आप। When you got the discomfort in your home, so make comfortableness in every relations. Make comfortableness with your teacher, guru, or your boss. योग। किसी ने कुछ कहा, अगर उसको एंट्री करने दिया तो अगली बार मिलेंगे तो या तो आग झुकी रहेगी, या गुस्से में रहोगे, या द्वेष की भावना होगी। तो सब हटा देना, तब होगा योग। वो प्राणायाम से मैं करा सकता हूँ आप बहुत आसानी से, बहुत आनंद। कोई आपको उल्टा सीधा बोलता है, गाली दे देता है, कुछ भी होता है, एवरी डे यू आर इन क्वारल, बट इवन दो दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर हार्ट एंड माइंड, दैट इज योग। और अगर कोई चीज पुरानी अंदर है भी तो बाहर नहीं आएगी उसको देखते हुए, दैट इज योग। दिस आप यूनाइट हो पाएंगे, आप सब स्थिति में रहेंगे, वही तो योग है। हर रिलेशन को पहचानिए। जब पहचान लेंगे, उनकी कोई भी बात आपको हर्ट ना करे, परेशान ना करे, आप जवाब ना दें, दैट इज योग। यूनाइट करेंगे ना उससे। तो पहले अपने सराउंडिंग में योग की भावना को उत्पन्न करें, रिलेशन बनाइए, अच्छे रिलेशन बनाइए। उसके बाद समाज, ये तो हो गया आपका परिवार अपना। फिर समाज, सामाजिक रूप से कोई भी आपका प्राणी, कोई भी रिलेशन को प्योरीफाइड करे। फिर वह प्रकृति, प्रकृति से जुड़िए। डू समथिंग फॉर नेचर। पहले अपने शरीर के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने समाज के लिए, फिर प्रकृति के लिए जरूर करिए कुछ। एवरी डे डू समथिंग फॉर द नेचर, योग। पेड़ पौधों से बात करिए, उनसे मिलिए, फूल को देख के प्रफुल्लित होइए, योग। यूनाइट होइए। पौधा लगाइए, डेली उसकी सेवा करिए, योग। ठीक है। उसके बाद अपने देश से जुड़िए, अपने अपने जो प्रदेश है उससे जुड़िए। क्या आप उसके लिए कुछ सोचते हैं? कुछ यूपी में रहे, यूपी के लिए कभी कुछ सोचा आपने कि आप क्या कर सकते हैं? अपने भारतवर्ष के लिए क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट उसको फॉलो कर दिए जो हमें चाहिए, योग। अपने प्रकृति के लिए करा, अपने संसार के लिए करा योग, ब्रह्मांड के लिए करा योग। क्या कुछ कर पा रहे हैं? वी डोंट थिंक अबाउट इट। स्टार्ट फ्रॉम द बेस। सब आसन प्राणायाम
सब दूर है, पहले यहाँ तो जुड़िए, अपने बच्चे से 2 मिनट बात करिए, अपनी पत्नी से 2 मिनट बात करिए। एवरीडे गिव द टाइम टू एवरीवन, हर एक रिलेशन को मेंटेन करिए योग, और आपको फिर मिलेगा भी तो हिसाब से। We are not, if you are not comfortable at home, if you are not comfortable at your office, zero. आपकी affinity to work will reduce, zero. आप ऑफिस में गए, if your affinity is gone because your environment is not good, make yourself inside environment. आपका जब जाएंगे तो आपके चारों तरफ ऐसा ऑरा बनेगा कि सब लोग आपसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, इसको हम पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी करते हैं। ये योग, आपको कल बॉस ने डांट दिया, कुछ भी कर दिया, गाली गलौच, अगले दिन शक्ल बिगड़ी है, नो कर दिया, इट्स ओके, योग, यूनाइट अगेन स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग, विद प्लेजेंट फेस। कभी भी आपके फेस पे शिकन नहीं आएगी, जो माथा है ना इस पर झुर्रियां नहीं आएगी। जब भी कोई चीज हम सोचते हैं, देखते हो, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा बहुत सिकुड़ जाती है, माथे पे झुर्रियां आ जाती है कि हमेशा रिलैक्स करो। तो स्टार्ट फ्रॉम रिलैक्सिंग फ्रॉम योर आईब्रोज एंड योर फोरहेड, योग करिए, जोड़िए इसको, अपने मन से जोड़िए, इसको रिलैक्स कर दीजिए, आपका नेचर चेंज हो जाए। मैं आपको किसी दिन आपको बताऊंगा, शवासन, योग निद्रा, शिवासन और मेडिटेशन, स्टेप्स हैं जी, हर एक चीज के स्टेप्स हैं। मैं जो भी योगा करता हूं उसमें सब में स्टेप्स डालता हूं। जो आपका अष्टांग योग एक स्टेप है, इसी तरह से मैंने सुदर्शन चक्र मेडिटेशन बनाया, उसमें 6 स्टेप्स। उसमें अगर स्टेप में जाते जाएंगे, अपने आप से आप सब चीज से विड्रॉ करते जाएंगे, आपको पता ही चलेगा आप बैठे कहाँ हैं। कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है, कुछ नहीं, ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा। आंखें खुली है तब भी नहीं देख रहे, आंखें खुली है, खुली आंखों से करते हैं, अर्ध बंद, अर्ध खुली आंखों से हम मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। जो अभी तक कराया जाता है वो केवल शवासन और योग निद्रा तक सीमित है, परंतु ध्यान भी ठीक है, लेकिन मेडिटेशन को पूर्ण ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, जो योग वाला ध्यान है। जब तक आप इतने पवित्र नहीं हो जाएंगे तब तक आप योग नहीं कर सकते। आपको अगर अपने बॉस को, अपने टीचर को कुछ कहना, तो आपको उसके लेवल की बात कहनी पड़ेगी। आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनका लेवल है कि वो मेरी बात सुन पा रहे, जब मेरा लेवल आपके बराबर की, मैं कम से कम आपको सुना पा रहा हूं और आप मेरे को झेल पा रहे, थैंक यू फॉर दैट, है ना। मैं बोलता चलिए, अब मैं आपको कुछ क्रियाएं कराता हूँ, प्लीज मेरे साथ करिए। बहुत सिंपल क्रियाएं, बहुत ही सिंपल है परंतु अद्भुत है। आपको पता है पथ्य भोजन, अभी हम आपके बड़ा एक अजीब सा एक वाक्य बताते हैं। यू नो, अब मैं क्लिनिकल मेडिकल थेरेपेटिक योगा की बात करता हूँ, छोटी सी। कई जगह आता है कि आप योग साधना में बैठे हैं और घर में जो है खुशबू आ गई तो ध्यान वहां चला गया, प्याज भून दिया, अब जो है कुछ बन रहा होगा, है ना। तो खाने की प्रवृत्ति हो जाती है। कहा यह जाता है अगर आपको कुछ भोगने का मन कर गया तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो लोगों ने, कई लोग बताया कि पहले भोग कर लीजिए किसी भी तरह का, उसके बाद आपका मन तृप्त हो गया, उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। सुना होगा आपने, एम आई राइट? सुना ही नहीं सुना? ऐसे करके बता दो, बोलना नहीं कोई। सुना है ना, कि पहले भोग लीजिए उसके बाद आप समाधि में आराम से जा सकते हैं। लेकिन घंटे बाद फिर भूख लगाई और बढ़िया चीज चाहिए, उसके 2 घंटे बाद फिर लगाई और 3 घंटे बाद चाहिए होता है किसी को, तो वो साधन नहीं। हमें इस तरह का बनना है कि हमें भोग करने के बिना भी हम कर सकते। दूसरा हुआ, अगर आपको कोई तकलीफ है तो पहले उसका निवारण करना। आपने देखा होगा कि, और भी सुना होगा कई महान लोगों से, कि कोका कोला जहर है। सब लोगों ने बहुत कहा
और उसको फ्लश में डाल के फ्लश साफ करने के लिए यूज करना चाहिए। हमारे एक पेशेंट आई और उन्हें बोला जी मैंने ट्राई करी कि फ्लश उससे साफ हो जाए। शी हैज ट्राइड 2 लीटर और कोका कोला फॉर फ्लशिंग टू क्लीन द फ्लश। दैट इज रियल स्टोरी, आई एम नॉट जोकिंग, रियल स्टोरी। अगर वो सुनी होगी कहीं पर तो कहीं सही बात है, वो हुआ नहीं फ्लश साफ। एक चीज हो रहा है, जो चीज फ्लश साफ कर सकते क्या आपकी हाथों को साफ नहीं कर सकती? उल्टा सोच के देखो ना, हमारे जो फ्लश साफ कर सकते हमारी हाथों को भी साफ करे आपको। I have utilized Coca-Cola as a medicine for more than 1000 patients. आपको हैरानी होगी, right? I'll tell you how your कभी जरूरत पड़ने होता है। चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम। अब आप मेरे हाथों की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड में अपना राइट हैंड ऊपर लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। ओके, 2 तरह की ब्रीदिंग करेंगे। पहले हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। सब लोग चाहे हाथ रखें तो बेटर रहेगा, नहीं रखते तो खाली आप ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं। एक और चीज बताएं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मेरे पास एक और टॉपिक है इसमें, मुद्रा। यस, हस्त मुद्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्राणायाम में हस्त मुद्रा इस्तेमाल होती है। 5 उंगलियां हैं, आप इस तरह से रख लीजिए, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पृथ्वी नीचे है जल, इंडिकेशन फॉर लिटिल फिंगर इज जल। ठीक है, जब हम बोरिंग करते हैं नीचे जल है ना, हालांकि उसके नीचे भी पृथ्वी है, लेकिन जल, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके ऊपर आकाश, उसके ऊपर वायु और उसके ऊपर अग्नि। अग्नि तो समझ लो, अगर इसका अंगूठा दिखा दिया तो गुस्सा आ जाए, अग्नि याद रहेगी। सो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व हैं और 5 से हमने मुद्रा बनानी है। ठीक है, अब मुद्रा एक हमने सुना है ध्यान मुद्रा, सब लोग लगाते हैं ध्यान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को उंगली से थंब से टच कर लीजिए, 3 उंगलियां सीधी और हथेली आसमान पर, कमर को सीधा रखें और केवल खींच के रखें, हल्का सा ढीला छोड़े, तनाव मुक्त करें। अब ये होगी ध्यान मुद्रा, लेकिन कभी भी ये ध्यान मुद्रा किसी ने भी कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचा। आंख बंद करके इंडेक्स फिंगर को, जो थंब को जो टच पॉइंट है, उसको आप बार बार प्रेशर करें, बिल्कुल बिना छोड़े, टच किए हुए खाली दबाएं, बार बार दबाएं, बार बार दबाएं, बार बार, और दबाने के बाद छोड़ दें। ये मैंने थोड़ा फास्ट करने के लिए बताया। अब उस टच पॉइंट पर आंख बंद करके कंसंट्रेट करें। जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको कुछ देर बाद, किसी को 1 मिनट में, किसी को 2 मिनट में, किसी को 15 मिनट में जाके थ्रॉबिंग और पल्सेशन फील। जब वो थ्रॉबिंग और पल्सेशन फील होंगी, तब आप समझ लीजिए कि आपकी ध्यान मुद्रा शुरू होगी। अब आपकी जो ये ध्यान मुद्रा है, ये कन्वर्ट हो जाएगी ज्ञान मुद्रा में। आपने कई लोगों को सुना होगा, किसी को ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, किसी को ध्यान मुद्रा बोलते हैं। बट आई हैव गॉन थ्रू introspection of this particular mudra. I found unless until your dhyan mudra is complete, you cannot convert it to ज्ञान। तो ध्यान लगेगा तो ज्ञान होगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज्ञान दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं। इसलिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा, जैसे उस थ्रॉबिंग हो जाएगी और उस पर लगातार कंसंट्रेट करते रहेंगे, आपको मार्गदर्शन के लिए आंखें खुल जाएंगी, सुषुम्ना नाड़ी का शुरुआत हो जाएगी, आप सात्विक भाव में एंट्री कर जाएंगे और आपकी ज्ञान मुद्रा शुरू हो जाएगी। तब आप सात्विक ज्ञान को पकड़, एक तो होगी ये और ये। दूसरी होती है, आपने सुना होगा अंजलि मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और अंगूठे इस तरह से बंद होते हैं ताकि अगर उसमें पानी पड़ जाए हाथ में तो नीचे ना जाए। सारी उंगलियां और अंगूठे मिले होते हैं इस तरह से, और ये नाभि के नीचे रखते हैं, इसको बोलते हैं हम अंजलि मुद्रा। अब अंजलि मुद्रा को थोड़ा सा चेंज करेंगे और अंगूठे को खोल,
और अंगूठा टच। कैन यू सी? अब अंगूठे को बार बार प्रेस करेंगे और दबाएंगे और छोड़ेंगे, टच को छोड़ेंगे। इसको बोलेंगे हम ध्यान मुद्रा। When you feel the abdomen pulsation or pulses, your Dhyana Mudra is complete. Now, once it is complete, then you can have Gyan converted to Gyan. ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अंजलि मुद्रा में सबको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद भी किसी को कुछ पूछना हो तो आई ट्राई टू गिव द आंसर। नाउ राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे रखिए पेट पर। अब देखिए मेरे को बड़े ध्यान से, थोड़ा हम पीछे हो जाते हैं। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद पेट को स्टैटिक कर दो। पेट को सांस निकालने के बाद पेट को रोक देंगे और अब सांस भरेंगे हम चेस्ट में और सांस निकालेंगे चेस्ट। इसको बोलते हैं चेस्ट में। I'll show you my literal view also. Just see. चेस्ट फूलेगी, चेस्ट फूले तो मेरा ऊपर वाला हाथ हिलेगा, नीचे वाला नहीं। इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग। मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, इनका मैं इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। राइट साइड में है पंकज योगाचार्य और ये पीएचडी स्कॉलर हैं और ये कंसल्टेंट हैं। पंकज जी ये कंसल्टेंट है आपके कैलाश हॉस्पिटल में एज योगा कंसल्टेंट। और लेफ्ट में है डॉक्टर प्रियंका, ये बीएचएमएस है और ये एमए योगाचार्य। दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैं रेगुलर सिखाता हूँ और इनको डीपली मैं सिखा पाया हूँ क्योंकि इनमें अंदर प्रवृत्ति है सीखने की, तो मैं सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि मैं मैक्सिमम लोगों को मना कर देता हूँ अगर वो नहीं सीखता। एक्चुअली योगा सब करना चाहते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग करिए आप दोनों। योगा सब लोग करना चाहते, सीखना बहुत कम चाहते। ठीक है, कोशिश करें, सीखें और फिर करें और अपनी कमियों को अपने गुरु के सामने, टीचर के सामने खत्म करने के बाद, उसको फिल्टर आउट करने के बाद जब करेंगे तब आपको उसका इफेक्ट आएगा। सो देयर लेफ्ट हैंड विल नॉट मूव, ओनली द अपर हैंड विल। ओके, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनको मैं बहुत डीपली कई चीजें करा चुका हूँ, तो ज्ञान धीरे धीरे दे रहा हूँ जितना मैंने प्राप्त किया। अब आप सब जान अपने प्राणायाम, तो आपको बेसिक चीजें जरूर सीखनी। बेसिक आपको नहीं आती तो प्राणायाम में आप डीपली जा सकते। अगर आपको डीप जाना है तो प्राणायाम के लिए आप कम से 5-6 महीना सीखना पड़ेगा, उससे पहले आप डीपली जा सकते। इतना डीप है प्राणायाम। हर प्राणायाम के रंग रूप अलग अलग है, बहुत डीप है सर। कई 100 प्राणायाम हमारे शास्त्रों में। देखिए अब आपको एक चीज और बताएं, रिलैक्स। हर एक हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हर एक क्रिया गोपनीय है। हर एक क्रिया गोपनीय, उसको किसी को बताया नहीं जाता। और योगी लोग खुद करते रहते, खुद अभ्यास करते, कुछ का आभास करते और उसमें जो उनकी अनुभूति आती है वो अपने पास रखते। लेकिन जो उनको अगर कोई सही पात्र मिलता है उसको वो सिखाता। अब आप सोचिए, जो इतना गुप्त ज्ञान है उसमें से कितना कुछ मिला होगा। तो आप, मैंने कई शास्त्र पढ़े, उसमें कई सारी चीजें लिखी गई हैं, उसको ही पढ़ के हम सारी चीज बोलते रहते हैं बुक्स में से, और वही लिख के हम लोग सारा एजुकेशन चलता है। परंतु उसको आप सोचिए, जिसने ये योग को
गुप्त रखा, कितना बताया होगा और कितना वो बताने के बाद विद्यार्थी को समझ आया और कितना वो कर पाया होगा और कितने बार फिल्टर होकर में क्या मिला होगा, उसके बाद जो मिला है वो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि हम जितना भी योगा है वो है योगा, केवल फैट टू फिट योगा रह गया, टू मेक ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन, गुड बॉडी बिल्डिंग, नथिंग एल्स, फैट टू फिट योगा रहे। और आसन जो दिखते हैं बहुत खूबसूरत बढ़िया से, लेकिन अगर योग पढ़ेंगे तो आसन से कहीं दूर है और दूर। ये वो है जो वो चट्टान है जो समुद्र के अंदर इतनी सी दिखती है और नीचे जमीन तक लगी है। तो योगा वो है जो दिखता है, योग वो है जो नीचे अंदर नहीं। अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपको बता दें सारे आसन में, सारे प्राणायाम्स में ये सारी ब्रीदिंग यूज होती है, सारी ब्रीदिंग, हर एक आसन में, हर एक प्राणायाम, लेकिन ये आपको सीखना जरूरी। अब हम दोबारा से हाथ रखेंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, मेरे पेट की तरफ देखिए, सांस बाहर निकाल के मैंने चेस्ट को और शोल्डर को बिल्कुल स्टैटिक कर दिया, नो मूवमेंट, ओनली एब्डोमिनल मूवमेंट। सी, जो बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मूवमेंट होगी, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, पेट के साथ जुड़ा है चेस्ट, वही होगी, बाकी नहीं। सी, साइड पोज दिखाते आप, upper end will not move, only the lower end will. अपर एंड बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मूव करेगा क्योंकि ट्रंक का एक पार्ट, ठीक है। अब मैं आपके अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ, वो हमारे गुरु भी और विद्यार्थी बहुत कुछ सिखाते हैं, पंकज जी भी और प्रियंका। इनका जो चेस्ट है वो नहीं हिलेगा, केवल पेट का लोअर हैंड्स देखिए, केवल पेट हिलेगा और चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट। So which is called as abdominal breathing. किसी को भी प्राणायाम करने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसके द्वारा करेंगे प्राणायाम, आपको पूरा डीप ले जा सकता हूँ मैं, और इतना डीप कि आपको एक एक चीज का आनंद मिले। राइट नाउ आई टेल यू, इन योगा when you do the chest breathing, your lungs spread like this in along this transverse, ठीक। और जब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड लॉन्गिट्यूडनल, एलोंगेशन, ठीक है। जैसे आप दोबारा हो, हम ऐसे करके फुलाएंगे तो लंबाई में फूलता है और सामने फुलाएंगे तो चौड़ाई। सेम हियर, बिकॉज लंग्स आर अ बैलून टाइप। क्लियर? रिलैक्स। So these two breathings are base of प्राणायाम। अब हम बताते हैं आपको तीसरी ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। कई लोगों को क्लैविकुलर ब्रीदिंग भी बताया, बट उसमें जब हम चेस्ट को खींचते और शोल्डर को ऊपर करते हैं तो क्लैविकुलर पार्ट ऑफ लंग्स, दैट इज कॉल्ड एपिकल पार्ट ऑफ लंग्स, इज आल्सो एक्सपेंडेड, बट देयर इज अ डीप चेस्ट ब्रीदिंग कैन डू, राइट। So third breathing is yogic breathing, जिसमें योगी लोग सांस। अब हम जब चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे चेस्ट ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़ता है और चेस्ट ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, मेनली हार्ट एंड लंग्स। जब हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे जो एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्टमक, duodenum, intestines and kidneys, even the lower abdominal organs, the pelvic organs also. Both are necessary to. जब हम खाना खाएं तो लोग कहते हैं खाना खाने के बाद योगा नहीं करना है, रॉन्ग।
खाना खाने के बाद योगा करना जरूरी है। क्या करना है? रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग, so that the blood supply of your digestive system will increase। आराम से बैठिए। और अगर यही क्रिया आप सूर्य नाड़ी से करेंगे तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारी जठर ग्रोथ, एक एक प्राणायाम का रूप रंग चेंज करके उसका इफेक्ट चेंज। लोग कहते हैं कि चंद्र नाड़ी के प्राणायाम ठंड में नहीं करना है, रॉन्ग। सूर्य नाड़ी के प्राणायाम आपने गर्मी में नहीं करना है, रॉन्ग। तो उसका जो इफेक्ट ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आपके सामने थाली रखी है, आपने क्या खाना है तो आपने चूज करना है ना, कि आपने सूर्य नाड़ी से गर्मी लेनी है या अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, या आपको उजाला चाहिए, तो आपने सिद्ध करना है, आपने चूज करना है। चंद्र नाड़ी से आपको नींद चाहिए या आपको शांति चाहिए या ठंड चाहिए, तो आपने डिसाइड करना है। उस हिसाब से प्राणायाम का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल नहीं है, वेरी डीप, टोटल साइंटिफिक, राइट। I have taken some case of paralysis on some wrist drop and hand drop। मैंने उसको जिसको बताया था अपोलो हॉस्पिटल में that will die in 3 months, and now उनको मैंने पढ़ाया और मैं पंकज जी को उनके पास भेजता हूँ। शी इज टेकिंग रेगुलर क्लास फ्रॉम पंकज जी, जो मेरे सानिध्य में पढ़ते हैं, बताते हैं, और उनको मैं जो बताता हूँ वो उनको कराते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सबको करा पाऊँ, तो इनको बेच के कराते हैं। तो वो अभी पिछले 2 साल से शी इज टोटली ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। उनको पर्टिकुलर प्राणायाम कराया जाता है ब्रेन को, राइट। ब्रेन के किस पोर्शन को एक्टिवेट करना है आपको, क्या जो ग्लैंड्स है हमारी स्पाइनल बॉडी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उनके लिए कौन सा प्राणायाम किया जाए, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के लिए कौन सा प्राणायाम करना है, राइट साइड के लिए कौन सा करना है, ये सब चीज छोटा छोटा चेंज से प्राणायाम में तब्दील। ठीक है, अब हम कराते हैं आपको यौगिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है रियलाइज करिए जब बताऊंगा। योगी लोग क्या करते हैं, एक ही बार में चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को मूव करते हैं, तो ये पूरा ट्रंक एरिया यूज हो जाए। अब जब हम करेंगे तो हम आपको बता दें कि एक होती है औषधि जा सिद्धि। कई लोगों से पूछो भाई आपका ध्यान नहीं लगता तो आप मेडिटेशन कैसे करो, कहते कुछ नहीं, व्हाट वी डू। आपने योगी लोगों को देखा होगा कि वो एक फिल्म होती है उसको खींचते हैं, 2-3 बार खींचते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग शून्य हो जाता है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं कि मन परेशान है, टेंशन हो रहा है, बिजनेस वाले हैं, दुनिया भर का लूटा खसोटा, दूसरों के पैसे लेके अपने ऊपर गाड़ी चलाते हैं और रात को 4 पैग लगाते हैं और सो जाते हैं। डोंट बॉदर, उनके 4 पैग जो है वो क्या है, कौन सा भोजन हो जो अभी मैंने बताया आपको है ना, उनके लिए वही हो गया, है ना। अब वो कहते हैं जब हमारा मन परेशान तो हम योगा कैसे करेंगे, हम ध्यान कैसे लगाएंगे, वो 2 पैग लगाते हैं, ध्यान लगा लेते, क्यों? उनका दिमाग सुन हो जाता। अब मैं वो जो 2 और 4 पैग वाली बात बता रहा हूँ, जो मॉडर्न थ्योरी जो लोग करते हैं इस तरह से, उसको हम सही माने में हमारे इसमें भी दिया है, शास्त्रों में दिया है। उसका नाम है औषधि जा सिद्धि। सिद्धि प्राप्त कर लेने के औषधि का सेवन करना, जो हमारे शरीर को क्लीन करता है और मन को शांत कर देता है, दिमाग को शुद्ध कर देता है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता, ना दिखाई देता, बस मदमस्त। अब उस मदमस्त को मैं आपको प्राणायाम के द्वारा करा सकता हूँ, आपका दिमाग शून्य हो जाए, सोचना समझना रूट केवल 1 डायरेक्शन। ठीक है, वो होता है योगिक। ठीक है, अब हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग। 2 प्रकार की होती है, पहली है चेस्ट एब्डोमेन, दूसरी है एब्डोमेन चेस्ट। पहले आप बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे को, इसको कई तरीके से कराता हूँ, जो मैं सामने कराता हूँ। तो प्राणायाम के इतने रूप हैं, आसन करने के बाद
सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा इतना। आसन वो है जिसमें आप लगातार भी बैठे रहें और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं। देखिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और मत्स्येंद्र आसन में मत्स्येंद्र नाथ जी ने सिद्धि प्राप्त करी, क्योंकि उनका जन्म मत्स्य रूप में हुआ था। तो वो उस तरह का आसन लगा सकते थे, हर एक प्राणी नहीं लगा सकता। लगा सकता है लेकिन ज्यादा 30 सेकंड, 3 मिनट, 5 मिनट, कोई, परंतु उसको इतना नहीं लगा सकते घंटे भर आप ध्यान मूल दे। आसन वही है। हमसे पूछा गया कि आप कोई आसन बताएं जो आपका सबसे बढ़िया आसन है। मैं ठीक, जो आपका सबसे बढ़िया पोस्चर ने कहा हम करके दिखाएंगे शवासन, बैठ जाएंगे। बट आपको मैं बता दूं, शवासन सबसे डिफिकल्ट आसन है, सबसे मुश्किल आसन शवासन। सबसे मुश्किल प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे मुश्किल निद्रा योग निद्रा, ठीक है। सबसे मुश्किल ध्यान परमात्मा का ध्यान, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा इतना शुद्ध नहीं होगी कि परमात्मा के लेवल में पहुंचे, आप ध्यान लगाइए। छोटी छोटी चीजें समझ लें। तो अब शुरू करेंगे हम। पहले मेरे हाथों की तरफ देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, पॉइंट पर रिलैक्स करिए। मैं कर रहा हूं योगिक चेस्ट एब्डोमेन। इसका नाम वैसे कुछ और है, तो मैंने आपको इजीली बता दिया। सांस भरेंगे, एक सांस में ही पहले चेस्ट में सांस जाएगा, फिर आधा सांस पेट में। जब सांस बाहर आएगा तो पहले पेट से आएगा, फिर चेस्ट। सपोज करो एक बहुत बड़े संत महात्मा आपने एक बहुत बड़ा टेंट लगा पड़ा है और वहां पर जो है प्रवचन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो बड़े बड़े भक्त होते हैं सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं, और कुछ हमारे जैसे थे बिल्कुल ऐसी जगह बैठते हैं जब मौका पड़े तब से निकल जाए। जो स्टूडेंट होता है ना सबसे लास्ट में बैठता है, तो शैतानी भी करते हो, जब मौका पड़े नीचे से सड़क के बाहर। तो इसी तरह से जो मेन लोग होते हैं आगे चल के बैठ जाते, समय से बैठ जाते हैं, और जो भागने वाले पीछे से बैठते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो पहले, और अगर बाहर जाना पड़े तो पहले वाला नहीं जा सकता, बाद वाले जाएगा पहले, हमारा राइट। तो सहूलत के अनुसार से आप सीट सेट कर लीजिए, वही प्राणायाम है। आयाम मीन्स दिशा देना, राइट। तो आपने प्राण को कहां पर ले जाना है। एक और चीज आपको बताते हैं मध्य में, प्राण वायु नहीं है, एयर नहीं। प्राण वो शक्ति है जो ब्रह्मांड में खींच के वायु के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है और नाड़ियों में बहती है। प्राण का संचार नाड़ियों में होता है। अब नाड़ियों की व्याख्या भी जो शास्त्रों में दी गई है उसके हिसाब से आपको बता दें नाड़ी कौन सी है। कोई लोग कहते हैं नाड़ी है जो हम ये देखते नाड़ी। अब मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। नाड़ी का जो परिभाषा है वो है जो कि संचार करती है। तार, संचार किससे होता है, तारों से, या माध्यम होता है तारों से, या कोई भी अपनी जो फ्रीक्वेंसी आ रही, किस फ्रीक्वेंसी का आपके पास वो आ रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चीज आ रही है, ठीक है। नाड़ी का जो रूप है वो है संचार का ऑर्गन। हमारे शरीर में संचार का ऑर्गन कौन? नंबर पहला न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन है नाड़ी, दो प्रकार की, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, सेंसरी एंड मोटर। साइंस वाले समझते होंगे और बाकी लोग भी आसानी से समझ लेंगे। तो नाड़ी क्या है, न्यूरॉन। अभी कहते हैं कि जो हमारी नाड़ी बहुत ही महीन है, 70 समझ में कितने 70,000 का जोड़ना। नंबर पहला आपको समझिएगा, नाड़ी इसमें प्राण का संचार कर, जो भी चीज संचार करती है, जो मूव करा सकती है, जिसके थ्रू होता है वो नाड़ी है। दूसरा संचार होता है हमारे एनर्जी का ब्लड वेसल्स। इसमें क्या आता है, आर्टरीज एंड वेन्स। सो
artery heart to exit, extremes and extreme to heart. Center is heart. इधर ब्रेन है सर, इधर हार्ट. ठीक है. तीसरा, इसमें दो हो गया, आर्टरी एंड वेन. तीसरा हो गया लिम्फेटिक वेसल्स, उसमें भी प्राण का संचार. Am I right? Because the juices are coming in the form of fly in this lymphatic vessels, go through the lymphatic glands and spleen and just distributed to all the organs from head to toe. Right? So this is the fifth. इसमें भी एफर्ट डिफरेंट होती है, जो नीचे ले जाती है अपने आप से ऊपर भी आता है. राइट? जो मेटाबॉलिज्म होके आता है हमारे अंदर से, वो सारा इसके द्वारा वापस आता और जेल सिस्टम में चला जाता. तो द लीवर एग्जिट पार्ट है हमारे, स्टूल्स, यूरिन, पर्सपिरेशन एंड ब्लड. 4 एग्जिट पार्ट. स्टूल्स लीस्ट इंपॉर्टेंट, एक या दो बार हम स्टूल जाते, जो योगी है वो 2 बार जाते, सुबह और रात. जो रात को भोजन दिया वो सुबह तक निकाला, और जो सुबह से शाम तक है वो रात में एग्जिट खत्म, फ्री. कोशिश करिए आज के बाद थोड़ी देर जरूर रात को भी, बिफोर गोइंग टू बेड, go for toilet to pass stools and urine. So if you got the habit of it, you may start passing 2 times stools. That is the best way of sleeping. इसके अलावा second important exit part is urine. 3-4 times उसको बढ़ाने के लिए पानी पीजिए दबा के. तीसरा परस्पिरेशन, पसीना बहाइए, योग आसन करिए जिससे पसीना निकले. चौथा हुआ air 24 hours process, therefore we take more pressure on the planet than आसन. ठीक है, प्राणायाम पर इसलिए मैं बहुत जोर देता हूँ. नेक्स्ट अब हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग, योगिक चेस्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग. पहले आप मेरे को देख लीजिए, इसमें वेव्स की तरह से सांस जाएगा. चेस्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन चेस्ट. तो पहले सांस चेस्ट में जाएगा, फिर पेट में, फिर पेट से बाहर आएगा, फिर चेस्ट से. वेव्स मैं आपको वेव्स करके दिखाता हूँ, और ध्यान से देखिए. साइड पोज देखो, पहले मेरे देखिए. सांस गया चेस्ट में, फिर पेट में, फिर पेट से बाहर. अब थोड़ा फास्ट करके बताते हैं आपको. एक देखिए, can you see the waves of yogic breathing? Slow. Or one shot, one breathing without break, yogic chest breathing. चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, आप बड़ी ध्यान से देखिए. Just abdomen breathing, just concentrate, inflate the chest, then inflate the abdomen. Abdomen से बाहर, chest से बाहर. Inhale, lower your chest, lower your abdomen, squeeze your abdomen. Good. Both are doing rhythmic breathing. Just observe them. Weight under, chest under. Chest bar, weight bar. Weight under, chest under. Both are synchronized very well. Thanks to both of them, Dr. Priyanka, Pankaj, thank you. अब इस वेव्स को ब्रेक करके करिए, ब्रेक करके. यस, एक एक करके देखिए. रेल ब्रेक करके. यस, चेस्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन चेस्ट. Please go. Let me put the belt on.
ठीक है, क्लियर? नाउ दिस इज कॉल्ड एज योगिक चेस्ट एब्डोमिनल। ये योगी लोग इसलिए लेते थे, और इससे आपका ब्लड का जो प्रेशर है ब्रेन तक जाता है, और अगर हम जब फास्ट करते हैं तो हमारा सिर एकदम से सुन्न हो जाता है। उसके बाद अगर हम बैठे तो यूनिडायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं, और इसी ब्रीदिंग से हमारी जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है वो भी प्रॉपरली काम करती है, और सुषुम्ना नाड़ी में उसका फिनिश। अब हम बताते हैं आपको इसका दूसरा रूप, एब्डोमेन चेस्ट ब्रीदिंग। मतलब योगिक एब्डोमेन चेस्ट। हाथ यहाँ पे रखिए, राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड नीचे। अब पहले पेट में सांस जाएगा, फिर चेस्ट में, फिर चेस्ट से बाहर, फिर पेट। देखिए, वन शॉट। फास्ट। वेट, साइड पोज दिखाते हैं। फास्ट। क्लियर? इसको बोलते हैं योगिक चेस्ट, सॉरी, योगिक एब्डोमेन चेस्ट ब्रीदिंग। नाउ यू सी Dr. Priyanka and Pankaj start with yogic abdomen chest breathing. Good. 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 Slow करिए पहले। पंकज विचित्रा होमी और योगा क्लिनिक में योगा कंसल्टेंट है, यानी कि मेरे क्लिनिक में, और डॉक्टर प्रियंका मेरे क्लिनिक में कंसल्टेंट है होम्योपैथी और योगा। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, पूरा एक्यूरेट करने के लिए, और वेव्स की रेट पे थोड़ा सा फास्ट करिए। गुड। गुड, बिल्कुल सिंक्रोनाइज जा रहा है आपका। So this is called as yogic breathing. These four types of breathing you have to learn for exact yoga practice. जब तक ये चार ब्रीदिंग आप नहीं सीखेंगे तब तक आप प्राणायाम में डीप नहीं जा पाएंगे। प्राणायाम तो सब कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, बट उसको डायरेक्शन देना, अलग आयाम देना, उसको दिशा देना, उसको विस्तृत करना, उसको पहुंचाना जहां पर आप चाहते हैं, वो है एग्जैक्ट। इसके बाद आता है प्राण संयम, प्राण प्लस यम। प्राण संयम में दो प्रकार का होता है। आयाम तो आपको पता चल जाए, डायरेक्शन में कुछ नहीं है आपको। सपोज करो मैं प्राणायाम का रूप जो है अपने राइट हैंड में लेना चाहता हूँ, तो मैकेनिकल प्रोसेस भी, फिजियोलॉजिकल, फिजिकली मैंने सांस भरा, सांस छोड़ लिया, जोर से दबाया, ये आपका सूक्ष्म क्रिया हुई, लेकिन प्राणायाम भी हुआ। जैसे सूर्य नमस्कार को हम बोलते पूर्ण क्रिया, अगर 12 उसके कोशिश 12 बार कर लें तो उसमें प्राणायाम और आसन दोनों हो जाते हैं। इसी तरह से हर एक आसन में, हर एक सूक्ष्म क्रिया में प्राण का संचार जरूरी है। इसलिए हर एक सूक्ष्म व्यायाम, हर एक स्थूल व्यायाम
या आसन प्राणायाम ही है, क्योंकि प्राण का संचार उधर पहुंचा रहे हैं। कि प्राणायाम सबसे प्रमुख चीज है जो हमें करना है। दूसरा प्राणायाम की परिभाषा है प्राण प्लस यम, प्राण यम संयम, इसका मतलब है संयम। तो सेम दो प्रकार से हो सकता है। पहला संयम है कि सांस को इतना स्लो ले, इतना स्लो ले कि 1 मिनट में मिनिमम सांस ले। जब हम इसका अभ्यास कराते हैं तो, और प्राण संयम से ही आपका शवासन पूर्ण होगा, इसलिए वो भी प्राणायाम। शवासन भी सबसे बड़ा प्राणायाम है, क्योंकि संयम अगर नहीं है तो आप शवासन नहीं कर सकते। प्राण संयम के लिए आपको चाहे चेस्ट ब्रीदिंग करें, चाहे एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, चाहे चेस्ट एब्डोमेन करें, चाहे एब्डोमेन, संयम से सांस लें, यानी कि वेरी स्लो, ओनली स्लो ब्रीदिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ओनली स्लो ब्रीदिंग। और इसमें एक और शब्द आता है लॉन्ग। जितना आप लंबा लेंगे और स्लो लेंगे उतना आपको जो खर्चा है, ईश्वर ने आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग दी, जो आप इसमें खड़े वो आप जितना जल्दी खर्च कर देंगे उतना आपकी मृत्यु जल्दी होगी, जितना कम खर्च करेंगे उतनी आपकी मृत्यु डिले हो जाएगी। और प्राणायाम से आप यू कैन बी हैव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। जो डॉग है जल्दी जल्दी सांस लेता है, और जो कछुआ है कम सांस लेता है, उसकी उम्र ज्यादा होती है। हम उसके समय सुना हुआ है। तो मीन टाइम एक चीज हम आपको बता देते हैं, there are two methods of breathing, right? Two methods of breathing. One is nasal, other is vocal, throat से, right? थोड़ा सा डिफरेंस है। आंख की ब्रीदिंग में क्या होगा? फ्रिक्शन विल बी फेल्ट इन द नोज, और जहां पर होगा फ्रिक्शन विल बी फेल्ट इन द थ्रोट और नोज में अलग अलग। जैसे लोअर नेजल ब्रीदिंग, थ्रोट से ब्रीदिंग। आप दोनों लोग नेजल ब्रीदिंग करके बताइए, करिए। डॉक्टर प्रियंका, पंकज, योगाचार्य जी करिए। vocal breathing या throat breathing start. Nice. तो पहले जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो प्राणायाम एग्जिट करने के लिए आपको सीखनी होंगी, ताकि मैं आपको डीप ले जा सकूं। प्राणायाम में इतना अद्भुत एहसास होता है कि आपको बता नहीं सकते। शरीर स्वस्थ, मन शांत, मनोभावना बैलेंस, टोटल बैलेंस, बुद्धि तेज और आत्मा शुद्ध होती खाली प्राणायाम से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे संयम वाला प्राणायाम। संयम में आपको क्या करना है? धीरे 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 करके अपने चेस्ट और एब्डोमेन को सांस की मूवमेंट से बिल्कुल अलग समझ कि छेद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। सांस के साथ जो चेस्ट का और पेट का मूवमेंट होता है मिनिमाइज कर दीजिए। जैसे सब कंप्यूटर में करते हैं ना, मिनिमम दिखता तो है नहीं। इसको बोलते हैं प्राण संयम। धीरे धीरे उसकी गति स्लो कर दिए, पर बैलेंस होना चाहिए।
ये ना हो कि आप सेंस, जब भी मैं आपको देखिए 3 बड़े चीजें जो मैं कराता हूँ, अगर वो तीनों सीखेंगे तो आपको प्राणायाम इतना डीप चला जाएगा कि आप बताइए। क्लिनिकल साइंटिफिक थेरेपेटिक योगा, न्यू एरा प्राणायाम जो मैंने अपने बनाया है, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, और सुदर्शन चक्र मेडिटेशन जो मेरा अपना बनाया हुआ, ये तीनों सीख सकते हैं तो इसमें अद्भुत आनंद है। और इस कोरोना में जितने लोग परेशान हैं उसके लिए अलग प्राणायाम है, बीमारी के लिए अलग प्राणायाम है। जब पेशेंट होता है वो सुबह कुछ बताता है तो उसके लिए प्राणायाम का रूप रंग चेंज कर देते हैं, योग का रूप रंग चेंज, ठीक है। इसके मन के प्रभाव का चेंज करना है तो मैं प्राणायाम चेंज कर दे, इसका डायरेक्शन बदल दे, वही प्राणायाम। चलिए सब लोग कोशिश करें, रोटी मत बैठिए, खाली प्राण का संचार को आप धीरे धीरे शांति। सुदर्शन चक्र मेडिटेशन में हमारे 6 स्टेप्स हैं, वो भी आपके अद्भुत अभ्यास करके देखें, आनंद। बेसिकली आनंद की अनुभूति के लिए प्राणायाम मेडिटेशन रहता है। हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे और हमेशा यंग रहेंगे। 100 साल के बाद भी आप अपने आप को 16 साल का ना महसूस करें तो बताइए। जिसको बीमारी है उसको भी हम बेड पर लिटा लिटा के भी हम योगा करा सकते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो योगा नहीं कर सकता। लिखा पड़ा है कि इसके लिए योगा वर्जित है, इसके लिए योगा नहीं है। दैट इज टोटली रॉन्ग। क्लिनिकल थेरेपेटिक साइंटिफिक योगा, क्लिनिकल थेरेपेटिक न्यू एरा प्राणायाम टोटली डिफरेंट। हर एक आदमी को मैं करा सकता हूँ, लेकिन बच्चे को बिना बताए करा देते हैं। जो बच्चा चंचल है, परेशान है, उसको बिना बताए पूर्णिमा में अभ्यास कराते हैं। जो बच्चा डल है उसको सूर्य के समय कराते हैं, उसकी डलनेस खत्म होती है। जो हाइपर एक्टिव है, ऑटिज्म वाले बच्चे, उनको चंद्रमा की रोशनी में कराते हैं। सबका टाइम अलग अलग है, सबका चीज अलग अलग है, सबका नीड अलग है। हर एक पेशेंट अलग अलग है, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक अलग, उसके बाद प्राणायाम आसन सब चेंज हो जाता है, टोटल चेंज। दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोज कैरेक्टरिस्टिक, डायग्नोज प्राणायाम। चलिए करें प्राण संयम। मिनिमम सांस लें, लेकिन सांस लगातार इस तरह से ले कि सांस फूले नहीं। अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए देखिए आराम से, चेस्ट और पेट का मूवमेंट बिल्कुल मिनिमाइज, खाली एक सांस लीजिए पहले, बिल्कुल स्लो लेना और छोड़ना पूरा, बिल्कुल पतली हाथ से सांस लेना है। इसके कई सारे मेथड हैं, मैं कई सारे कराता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एहसास हो जाए कि बिल्कुल सुई की नोक की तरह से सांस जाना चाहिए और पूरा आनंद में डूब जाए, बिल्कुल आनंद। आसपास क्या है कुछ नजर नहीं आए, कुछ समझ नहीं आएगा। टोटली प्राणायाम के बाद प्रत्याहार जो महर्षि पतंजलि ने बताया, टोटल आपके अंदर एंट्री करवा दें। चलिए आप हमारे इनका देखिए, इनका चेस्ट ऑफ मूवमेंट देखिए, बिल्कुल मिनिमाइज होगा, बिल्कुल मिनिमाइज। टेकिंग वेरी स्लो ब्रेथ। संयम, जिसने प्राण पे संयम कर लिया वो अपने मन पे 100% संयम कर लेगा, क्योंकि प्राण का डायरेक्ट इफेक्ट मन पे होता है। अगर आपने प्राणायाम सीख लिया तो आपके मन पे काबू हो जाएगा 100%। जो गीता में दिया गया है ना कि मन को रोकना, मन को समझाना, मन को डायरेक्शन देना, वही आप प्राणायाम के माध्यम से सीख सकते हैं।
मन के प्रवाह को रोकना। राजयोग, जितने भी लोग हैं उनको जो फाइनल योग है जिसमें हम पहुंचाते हैं, दैट इज राजयोग। राजयोग, राजयोग एग्जैक्ट है क्या? अपने मन के राजा बनना। जैसा हम चाहे वैसा मन के रहिए ना, कि हम मन हमारे पांच इंद्रियों को देखता है। केवल मन ये करता है पांचों इंद्रियों को के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, प्रकृतियों को देखता है। मन के द्वारा हम उसको देखते हैं और उसी तरफ में चल पड़ते हैं। लेकिन मन का काम है केवल देखना और आपको बताना, लेकिन बुद्धि डिसीजन पावर लेती है, उसके पास है। तो मन विचलित ना हो उसके लिए प्राणायाम और हीलिंग डायरेक्शन चले जहां पर आप चाहते हैं। आप कौन? मैं मीन्स आत्मा। आत्मा किससे काम करती है? बुद्धि के द्वारा। और देखती किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन किससे देखता है? पांच इंद्रियों के द्वारा। किसको देखता है? विषयों को। ठीक है, तो इस प्रभाव को हमने फिल्टर करके मन के पास ले जाना है। जो हमारी इंद्रियां देख रही है उसको फिल्टर कर देना है। किसी ने कुछ कहा, हमने फिल्टर कर दिया, हमने उसका बाकी सुना नहीं, अच्छी चीजें नहीं, बाकी छोड़। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, जो बढ़िया चीजें बोले लो बाकी छोड़ देना। ठीक है, दैट्स द फिल्टर। सो आपके दिमाग में, आपके मन में इतना बढ़िया फिल्टर लगा दे जो बाहर की चीजें आप पसंद कर पाए, दैट इज योग। आप अपने अंदर तभी तो जाएंगे। सब लोग कहते हैं अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए, पर बाहर से तत्वों पर ध्यान दीजिए। जब अपने अंदर ध्यान दोगे तो आपका शरीर 6 फुट का 5 फुट का, उसको छोटा कर देंगे। सांस में ध्यान चला है, फिर हृदय में चला जाएगा, फिर मन में चला जाएगा। इतना स्लो, इतना शार्प हो जाएगा, बुद्धि में चला जाएगा। देन यू कैन फ्लाई ऑफ फॉर योर मेडिटेशन। इट्स नॉट इजी, देयर आर स्टेप्स। नेक्स्ट है संयम। दूसरा संयम होता है कुंभक। प्राणायाम, प्राण यम, यम मीन्स साधना। संयम करना, संयम मीन्स सांस ना लेना, रोक ही देना, कुंभक। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी ना। तो सांस को डिले करना या सांस को रोकना कुंभक की है। कुंभक होता है मेनली दो तरह का, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। तो जितने हमारे योगी हैं, जितने हमारे मुनि हैं, वो सब संयम करते हैं, कुंभक भी। सांस भर के रोकना बोलते हैं आंतरिक कुंभक, सांस बाहर निकाल के रोकना बोलते हैं बाह्य कुंभक। यथाशक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसी गुरु के सामने करें, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई लो है तो उसके हिसाब से आप कुंभक को चेंज करें। ब्लड प्रेशर 140/90 से विद मेडिसिन भी उससे ऊपर जाता है तो आपको कुंभक जरूर लगाना है, लेकिन थोड़ा। और अगर आपने कुंभक भी पूरा सीखना हो तो उसमें भी 5 स्टेप्स हैं जो मैंने अपने अनुभव करे। 5 स्टेप्स में आप अगर घुस गए तो आपका कुंभक संपूर्ण रूप से आनंद है। साइंटिफिक, टोटल साइंटिफिक, उसका इफेक्ट है। सब लोग कोशिश करें सांस भर के थोड़ी देर तक लेते, जितना आप यथाशक्ति रख सकते सब देखिए। ये खाने के बाद भी कर सकते हो, टेंशन नहीं। स्टॉप, मेल स्टॉप। पहले से है, सांस भर लीजिए, चाहे आप चिल को चेस्ट से लगा लें, सिखाएंगे आपको, देखिए।
रिलैक्स ब्रीदिंग, यथाशक्ति रोकिए। धीरे धीरे सांस लेते छोड़िए। जब तक आपके हाथ पैर में जमा, इसमें कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स अगर आपको सिखा देंगे तो आप डीप ले जा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, समय बढ़ा सकते हैं, बट इसका अभ्यास करना होता है। इसको बोलते हैं प्राण संयम, इसको प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ आंतरिक कुंभ। एक होता है बाह्य कुंभ, पूरा सांस बाहर निकाल के सांस को रोकना बोलते हैं, पूरा बाह्य कुंभ। ये थोड़ा सा आंतरिक कुंभ से थोड़ा पहले कुंभ। जो भी लोग इसको खूब अभ्यास करते हैं और बहुत आनंद है। Exhale fully, squeeze your abdomen and chest, then come back. अभी मैं इसे थोड़ा पहले छोड़ दूंगा, तो बड़ा झटके से सांस आता, इतना तेज सांस आता है कि आपके जितनी नाड़ियां हैं सारी खुल जाए। जितना नाड़ियां माला जिसको बोलते हैं, प्राण का संचार इतना फास्ट होगा कि सिर से लेकर घुटने तक और उंगलियों तक पूरा आपको महसूस होगा। होता क्या है, ब्लड का फ्लो स्लगिश हो जाता है, जैसे हम कुंभक की छूटे इतनी फास्ट होता है कि आपकी नाड़ियों का संचार, यमुना की बुराई की नाड़ियों के, तो सब शुद्ध हो जाए। और कहीं पर भी कोई उसमें मल होता है, कोई बीमारी की, उसको सबको वाइप ऑफ करके एग्जिट पार्ट पर जाता है। वो मैंने आपको बताया, यूरिन, स्टूल, परस्पिरेशन एंड ब्रेथ। सो दिस इज कॉल्ड एज आंतरिक कुंभक। कुंभक तीसरा होता है मध्य कुंभक। मेरे हिसाब से टाइम काफी हो गया, मेरे को समय बताया सर कितना होता है। अभी 4:30 हुआ, वैसे मैंने सही टाइम से शुरू कर दिया। कितना टाइम हो रहा है रिकॉर्ड करा देते इसको। इसके बाद होता है मध्य कुंभक। So you may continue for 10-15 minutes. Thank you. इसके बाद होता है मध्य कुंभक। So that we will take some questions from the students. हाँ, इसके बाद ले लेंगे। Yes, sir. ये कभी करा दो, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये तो अभी एक बेस है, छोटा सा बेस है। इसी बेस को पहले मजबूत करना होता है, इस बेस को मजबूत करना होता है, तब प्राणायाम आगे बढ़ते हैं। तो खाली वो नहीं हो पाएगा। देखिए, आसन करना और उसका प्रभाव लेके अपने अंदर उतारना, एक एक पॉइंट को टच करना, मन से भी, शरीर से भी और प्राण से भी। मैंने प्राण पहुंचना चाहिए। अब हम करते हैं मध्य कुंभक। मध्य कुंभक होता है 2 प्रकार। मध्य आंतरिक, आंतरिक मध्य कुंभक, एक बाह्य मध्य। आंतरिक मध्य कुंभक हुआ इनहेल, स्टॉप ब्रेथ, अगेन इनहेल, राइट। यानी कि सांस भरा, रोका और फिर से लिया। कंप्लीट करना है प्रोसेस, ठीक है। तो पहले आप करते हैं, आप लोग सांस बाहर निकाल दीजिए दोनों, तो उनको देखिए, सांस पूरा बाहर निकाल दीजिए। अब सांस भरे, रोक लेंगे, रोक लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, जितना यथाशक्ति रोकिए, फिर कंप्लीट करिए, मेल करिए, रिलैक्स, रिलैक्स ब्रीदिंग करिए। फिर से एक बार आंखें कुंभ करिए, इनहेल, स्टॉप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, अगेन इनहेल, गुड,
ये वो आपका आंतरिक कुंभ। इसी तरह से होगा बाह्य कुंभ। पहले एक रिलैक्स ब्रीदिंग ले लीजिए, पूरा सांस भर लीजिए, सांस निकालिए, निकालते ही बीच में रोक लीजिए, सांस को रोक लीजिए, सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर एक बार पूरा सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए, मध्य में रोक लीजिए, होल्ड योर ब्रेथ, स्टॉप ब्रेथ, पूरा सांस बाहर निकालिए। ये वो आपका आंतरिक मध्य कुंभ और बाह्य मध्य कुंभ। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, हालांकि ये भी बहुत डीप है, इसमें भी थोड़ा और ज्यादा डीप ले आते। जब हम कराते हैं तो एक एक चीज को महसूस करवा के जब तक हम अंदर ना उतारे तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है, हालांकि और भी चीजें हैं इसमें। और प्राणायाम का भी छोटा सा बेस बताया, इसमें हम डीप जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब मैं थोड़ा सा समय आपको क्वेश्चन आंसर के लिए देता हूँ, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन आंसर में पूरा मजा आएगा, और मैं पूरा ईश्वर की कृपा रही तो हमारे गुरुओं की कृपा रही तो मैं जरूर सबका आंसर दे पाऊंगा। चलिए शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एंलाइटनिंग द सेशन। आपने बहुत ही थैंक यू सर, डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू डॉक्टर मिस्टर पंकज, थैंक हाँ यू। डॉक्टर ये लोग बहुत पंकज और ही प्रियंका को सर बहुत धन्यवाद ये मैं हमको। बहुत ही इनका मेरा योगदान है और मेरे साथ जुड़े हुए, और ये वो हैं जो मेरे शिष्यों में बड़े प्रिय है मेरे को, क्योंकि इन्होंने फॉलोअप जो करा है वो जैसा मैं कहूँ वैसे करते हैं। और मेरे को ऐसे लोग चाहिए ताकि मैं अपना ज्ञान सारा दे पाऊँ। ज्ञानी पात्र होना जरूरी है, तो ज्ञान दिया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल। Okay. थैंक यू So, सो मच एंड आई एम सर। थैंकफुल टू देम कि वो मेरे को सुन पा रहे हैं और कर पाते हैं फॉलो। उनकी इच्छा thank भी you, sir. बहुत है Thank सीखने की, you तो बता। for giving Yes. us detailed concept of diet, pathya, everything, do and don'ts of yoga, and in such a wonderful way. So you have explained very nicely. And there's one question, Dr. Vinamra sir, you may ask. There's one question in the chat. Yes from ma'am, before going to this, the one message for the participant. The Google form form link has been shared in the chat box. You have to fill simultaneously the fill and submit that time. So in between, sir, we have some questions from the participants. Lalit Sharma asked us, what is the difference between Shavasana and Yoga Nidra? और योग विद्या देखिए, मैं आपको छोटा सा बताया था पहले, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पूरा बताने में पूरा 1 या 2 घंटे चाहिए पूरा डिटेल बताने में, शॉर्टकट में। शव आसन हम तब करते हैं जब कोई भी हमारा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हमको आराम चाहिए। सबसे पहला होता है if we do vigorous exercise, so lactic acid deposits are there in our muscles that prohibit further movement of the muscle. So Shavasana, first step is to remove that lactic acid from the muscle and just slowly pull down. वो होगा शवासन फर्स्ट। दूसरा, जो सांस फूला हो रहा है उसको नॉर्मल करने के लिए शवासन की जरूरत क्या है? शवासन होता है, सांस फूला हुआ है तो अगला हम नहीं कर सकते, हमने कोई क्रिया करी उसके बाद हम थोड़ी देर शवासन करते हैं या रिलैक्स ब्रीदिंग करते हैं, तो शवासन का ही पार्ट होता है। तो सांस फूला हुआ है तो हम अगला क्रिया नहीं कर सकते, उसको रिलीफ देने के लिए और रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, ब्रीदिंग को शांत करने के लिए शवासन। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया यूरिन और उसके द्वारा हमारे एक्सरसाइज के द्वारा उसको नॉर्मल करने के लिए, जो पल्स की थ्रॉबिंग बढ़ गई है, जो पल्स रेट बढ़ गया उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मन विचलित हो उसको भी शांत करने के लिए, हालांकि मन विचलित से शांत केवल ये 3 काम है। शवासन का काम है फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, नॉट एट ऑल माइंड एंड ब्रीदिंग।
शव आसन में केवल दो चीज होती है, शरीर को और सांस को शांत करना और उसका दूसरा मकसद नहीं। अगर आप देखें कोई शव पड़ा हुआ है तो उसमें दो ही चीज नहीं दिखती हमें, एक तो मूवमेंट, मेन तो मूवमेंट ही नहीं दिखता ना, तो मूवमेंट जीरो करना है, यानी कि हमको प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा, प्राण संयम का, स्लो सांस लेना, और इतना स्लो लेना है कि दूसरे आदमी देखे तो सोचे शव पड़ा हुआ है, ना कि कोई जीवित है, उसे बोलते शवासन। और शवासन का जो मकसद है वो मैंने आपको बताया। अब रहा योग निद्रा। शवासन में हमने शरीर को शांत किया और सांस। योग निद्रा में मन का शांति है, मन जो विचलित होता है उसको यूनिडायरेक्शनल करना है, और ये दो तरह से होता है। योग निद्रा होती है इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सट्रोस्पेक्शन। Introspection means you to move your mind inside the body. उसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़नी जरूरी है, इसको भी आप सिखाएंगे, पहले उसको चार्ट दिखा देंगे कि तुम्हारे शरीर में कौन कौन से अंग कहाँ पर हैं, तब योग निद्रा पूरी होगी इंट्रोस्पेक्शन वाली, नहीं तो समझ नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा हुआ एक्सट्रोस्पेक्शन, जिसमें बाहर का मूवमेंट देते हैं, ब्रह्मांड में घुमाते, जहां हमारी मर्जी में घूमते, वही मन के द्वारा। फर्क क्या पड़ता है, मन शांत होता है, यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, ये होती है योग निद्रा। लेकिन कई लोगों ने इसी क्रिया को मेडिटेशन में डाल दिया कि ये मेडिटेशन। अब वो क्या हुआ, जब आपका शरीर शांत हो गया, ब्रीदिंग शांत होगी, मन शांत हो गया, तो मन शांत हो गया तो बुद्धि तो कुछ कर नहीं सकती, बुद्धि का काम खत्म। जब उसे कुछ मिल ही नहीं रहा मन से, पांचों हमारे जो ये है जिससे हम सेंसेस जो है हमारे सब शांत हो गए, दुखी कुछ नहीं, सुनाई नहीं, सब खत्म, तो बुद्धि का कोई काम नहीं रहा, तो बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाती है, स्थिर बुद्धि। तब हमें विवेक ज्ञान की उत्पत्ति है, जब स्थिर बुद्धि होती है, और जब हमारा मन भी और सब बुद्धि भी शांत हुई, उसको बोलते हैं स्थिरता, स्थिर आसन, शिव आसन। किसी ने नाम दिया, मेरा नाम दिया, पता नहीं है क्या, आई डोंट नो, बट दैट इज मेन। शिव सबसे ज्यादा स्थिर है, कोई और है ही नहीं। जो जमीन पर बैठे जिन्हें किसी की इच्छा ही नहीं, जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी प्राणायाम और सबके द्वारा, तब आप सबसे ज्यादा प्रसन्नचित रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी जीवन में, दिक्कत नाम की चीज खत्म, किसी चीज में संशय ही नहीं होगा, सब चीज क्लियर, सब चीज क्रिस्टल क्लियर, आपका मन भी क्रिस्टल क्लियर, आपकी बुद्धि क्रिस्टल क्लियर, तभी तो ये आत्मा क्रिस्टल क्लियर होगी। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगी तभी तो परमात्मा के गुण मिलेंगे। किसी देवता की पूजा करना, शिव की पूजा करना, हम शिव की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि शिव है आदि देव, योग गुरु, आदि गुरु, इन्हें शुरू करा योग। तो जब तक हम उस देवता के तुल्य नहीं होते, हमारी पूजा व्यर्थ है। घंटी बजाना, आरती करना, चालीसा रखना, व्रत रखना, नथिंग, जीरो मेरे हिसाब से। बाकी लोग क्षमा करें, किसी का मैं मन नहीं दुखाना चाहता, बट मैं पूजा नहीं करता, ना दिया बाती करता, जब तक अपने अंदर की बत्ती जला लो, सब जबकि यहाँ यहाँ और यहाँ। So one more question is here. अब ये कंप्लीट होने दो। इसके बाद आते हैं योग निद्रा के बाद ध्यान, मेडिटेशन। जब आप स्थिर बुद्धि हो जाएंगे तभी मेडिटेशन कर सकते, तब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह शुरू। वेरी गुड, नेक्स्ट प्लीज। Okay, sir. Thank you. थोड़ा Thank मार दिया मैंने। you. So one question from Iti Srivastav, and she's saying, how should we breathe normally when we are not doing pranayam? And how can we practice to be aware of breathing all the time? देखिए, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग और अनकॉन्शियस कुंभक लगता है, ईश्वर की देन है ये, लेकिन कॉन्शियस ब्रीदिंग इज प्राणायाम। सिंपल ब्रीदिंग और उससे क्या करें, कॉन्शियस ब्रीदिंग इज प्राणायाम। और आप देखिए, कुदरत ने हमको कुंभक दिया है, अल्प विराम,
इसको बोलते हैं अल्प विराम, अल्प कुंभक। कैसे हमने सांस लिया, हल्का तो रोकना पड़ता है तभी निकलता है। आपने वो खो खो खेली है, खो खो, उसमें जाके टच करके वापस जरूर आना पड़ता है। यू नो इट, so the same in our breathing, inhale before exhalation there is a अल्प विराम, हार्ट के बीच में अल्प विराम, पल्स में अल्प विराम। ये कुदरत की देन है, ये सब कुंभक है, इसको समझिए। जब इस कुंभक को हम जान के करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, वो है प्राणायाम, संयम वाला। ठीक है, प्राण प्लस यम, संयम वाला वो है, उसी को कुंभक बोलते हैं, उसी को प्राणायाम बोलते हैं, उसी कॉन्शियस ब्रीदिंग को प्राणायाम बोलते हैं। अदरवाइज आप आराम से सांस लेते, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुदरत ने दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक होता है, अगर आपने कभी सुना हो मूर्छित प्राणायाम, आज तक कभी सुना, कभी किया है किसी ने? है, आपको सामने करवा के दिखा के रोज करके वो जगह भी देंगे। सब कुछ सीखा है भाई, करा है, अभ्यास करा तो बता पा रहे, नहीं तो नहीं बता। प्राणायाम बहुत सारे उसमें, लेकिन उसका अभ्यास करना मेरे को एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था प्राणायाम में। प्राणायाम में मैंने बहुत, आई एम राइटिंग अ बुक, बट वो भी पूरी पता नहीं कब होगी। वेरी डिफिकल्ट टू राइट दैट डीपनेस ऑफ द प्राणायाम, बिकॉज ये गुरु शिष्य परंपरा का है। किसी को सिखा सकते सामने बैठ के, किताब पढ़ के ये सीखा नहीं जाता। चलिए पीछे प्लीज, ये कंप्लीट हुआ, इनको समझ आया नहीं आया प्लीज बताइए। कभी मैं बोलता जा रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। Yes, I have sir one question, sir. हाँ प्लीज। Sir, nowadays we are getting so many WhatsApp messages that to hold the breathe is for 1 minute, and how much capacity we have to hold, then we have find that our lung is working well. So what is your 30 opinion, sir? 30 seconds. Sorry, sir? Medically it is 30 seconds. 30 seconds. Medically 30 seconds. 30 seconds. Yes. Okay. So it is relevant अगर with the practice of कोरोना pranayama, or में it is differ जितने भी from this? कोविड के मरीज हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मरीज हैं, अगर वो 30 सेकंड्स ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। Okay. अबव 30 सेकंड। जो कोविड के पेशेंट, जितने भी जिनका निमोनिया हो रहा है, सी वी आई गॉट मोर, मैंने हजारों लोगों को होम्योपैथी दवाई दी है, टोटल सक्सेसफुल। ओनली 2 पेशेंट्स आउट ऑफ thousands, one was not able to take the medicine, one was 92 years of age, only 2 died, everyone is lived by homeopathy medicine, a series of medicine, very nicely deeply acting. Always try naturopathy first, then homeopathy, then ayurvedic, then allopathy, then surgery बाद में मुझे काम करते हैं। So that's the series which I used to tell to the patient. And योगा उसमें आता है, नेचुरोपैथी के अंदर योगा भी है। योगा का हर एक पेशेंट की जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से 2 प्राणायाम भी बताती है। बहुत है, बहुत लोगों को मैंने वीडियो कॉलिंग से प्राणायाम कराए, उनका डर निकालने के लिए, उनको जो ब्रेथलेस है उसको समझाने के लिए। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। यस, आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन ही है आंसर? नहीं sir, okay sir. नहीं sir, you have mentioned that like at least one have to hold up to the 30 seconds. That will be better for the. इसका रिकॉर्ड जो मैंने अभी तक देखा है, 45 मिनट्स का रिकॉर्ड है। 45 minutes. आप देखिएगा नहीं, अब वो सच्चा झूठा है दोनों। Very recently we have seen Baba Ramdev sir. He has demonstrated that to means Bahai Kumbhak he has done, and they have shows that unka saturated oxygen is coming down up to the 50. Then again when they inhale, then automatically it is cope up with that 95%. मैं आपको सारे प्राणायाम का अभ्यास मेरे साथ चलिए, मैं तो बहुत जगह गया हूँ। एक्चुअली मेरे को तो पैशन है इस चीज का, not profession, not my professional passion. I'm doing researches. हम लोग स्पेशली सारी चीज लेके जाते हैं, ऑक्सीमीटर वगैरह सब चीज लेके जाते हैं। तुंगनाथ, केदारनाथ अभी हम गए थे, अभी पीछे गए। Yes, yes. कोरोना काल में भी गए थे। इसके लिए थोड़ा सा ना, थोड़ा सन की आदमी चाहिए तो हम हैं। How you got the permission, sir? नहीं, वो सब हम सारे टेस्ट करा गए। देयर वाज अ टीम ऑफ पीपल, सो आई टेक द टीम फॉर दैट। सारा टेस्ट वगैरह करा के गए थे कोविड के सब। हाँ सर, any question? So I think Dr. Neha Katuria ma'am is there. Yeah. Ma'am,
So we welcome Dr. Neha Kathuria ma'am. She's a assistant, she's a visiting faculty in Amity Institute of Indian System of Medicines, and she's teaching our students, and she's with us, and we want ma'am to say something about this webinar. Ah, Yes. Dr. Kathuria, I know it, I know it. I know. Actually, so it was very nice session, and you know, the depth of the pranayam, which the way you have explained is amazing. Actually, the real sense to understand actually the prana, the flow, which is more important. You know, mugging up the types of pranayam is not important. Understanding the concept, which is working inside on a therapeutic as well as spiritual aspect, that is more जहाँ important. तक अभी तो आपको अच्छा लगा खाली, जब आप हमारे सामने करेंगे और आप उतार देंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है अपने शरीर की Exactly. शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आपकी मनोभावना के अंदर अगर ना फर्क पड़े तो बताइएगा। एकदम नहीं, बहुत अच्छा था सर, बहुत और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कैसा करा है उसको छोड़ दिए, जो समझ नहीं आया उसको पूछ लिए, लेकिन फॉलो अप करने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली मेरा उद्देश्य है आपको ज्ञान देना, जितने मैंने प्राप्त करा है, बस जितना मेरे को पता है इतना पता है। देखिए, योगा के हिसाब से मैं केवल 0.0001% जानता हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि जो योगियों ने बताया वो बुक्स में इतना सा लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग परेशान हो जाएगा कि इससे आगे है क्या। अब हम क्या कर लें, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, माइंड नहीं करना प्लीज। इट इज अ रियल ट्रूथ। ऑल कोर्सेज आर कॉपी पेस्ट, ऑल द बुक्स आर कॉपी पेस्ट। वो लिखा और जो लेक्चर्स होते सारे कॉपी पेस्ट, नथिंग न्यू। और जब हम बुक से बार बात करते हैं तो हमसे पूछा है आप लोग को कोई रेफरेंस बताइए, जितने साइंटिस्ट हैं रेफरेंस बताइए। अरे जो मैंने अपना क्रिया किया उसका रेफरेंस कहाँ से बताऊंगा मैं? दैट इज एन एक्सपीरियंस एक्चुअली। और वो जो चीज है, देखिए योगियों ने अपना अनुभव लिखा, उन्होंने जो सोचा वो मेरे से अलग है। उन्होंने सांस लिया, उन्होंने सुना सोहम सोहम। मैं नहीं सुनता सोहम, मेरे को नहीं सुनाई देता। मेरे को राम राम सुनाई देता है, मेरे को रहीम रहीम सुनाई देता है, मेरे को अल्लाह अल्लाह सुनाई देता है, मेरे को गॉड गॉड सुनाई देता है, मेरे को ओम सुनाई देता है, और मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता है, फिर भी मैं अंतर्यामी। तो वो उनका एक्सपीरियंस था, अपना एक्सपीरियंस डालो ना। अब हम उसी को करे चले जा रहे हैं। वो उनका एक्सपीरियंस था। उस समय जो योगी थे वो अलग थे। आज हम अपने परिवार को साथ लेके चल रहे। हम हुए जो योग के माध्यम योग पर जा रहे हैं और अपना परिवार का बोझ लेके जा रहे हैं। 1 क्विंटल की बोरी लेके हम कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। कितना मुश्किल है आप सोचिए। आप सारे योग साधना करने वाले हैं तो कितना मुश्किल है, उसके बावजूद अगर आप कर पा रहे, बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एटलीस्ट यू आर एबल टू लिसन मी। झेल पा रहे, बहुत है, थैंक यू। नहीं सर, बिल्कुल आपने ये बात सही बोली कि गृहस्थ जीवन के साथ अगर जो ये चीजें एग्जैक्टली, और सबकी जर्नी अलग है, सबका पाथ अलग है। गृहस्थ जीवन में भी इतना आनंददायक हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन पहले हमारी जो सोच थी ना, अब मैं आपको कभी यूथ होगा, यूथ के लिए जो लेक्चर देता हूँ मैं, आपको इतना आनंद आएगा कि लोगों को पता ही नहीं कि बेसिकली मैरिज क्या है, मैरिज का पर्पस क्या है। पहले हम लोग जब थे तब ये सोचते मैरिज में केवल एक ही डिफरेंस, दैट इज ओनली सेक्स। और वो 0.0001% भी उसका उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो। जिस दिन आप योग में आ जाएंगे उसके आनंद की अनुभूति लाख गुना बढ़ जाएगी। प्लस आपका जीवन का जो उद्देश्य वो चेंज हो जाएगा, निर्वाह चेंज हो जाएगा। आनंद की अनुभूति थ्रू आउट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, टोटल डिफरेंट, टोटल डिफरेंट। किसी ने कभी इसके बारे में पूछा तो आप एक अलग से वर्कशॉप रखिए, जितने यूथ है सबको बुलाइए, जो क्वेश्चन है एक एक चीज का बिल्कुल फिल्टर तरीके से, टोटल फिल्टर, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों को मिलाते हुए, उसके बाद एक एक दिमाग क्लियर हो जाए। और जितने डाइवर्स हो रहे हैं बहुत रुक जाएंगे, खाली सोच ऐसे पलट जाएंगे, समझने की शक्ति पलट जाएगी। उसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे बहुत अच्छे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, मैं
पता नहीं क्या नहीं, एक्चुअली सर दैट्स द ट्रुथ। एक्चुअली जब हम योग को महसूस करते हैं तो सबसे पहले तो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बोला, बंदे में फुल चेंज इज देयर। अपने आप आता है, आपको कुछ करना नहीं एग्जैक्टली, है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल चेंज, इट्स अबाउट द मेंटल चेंज एज वेल। एग्जैक्टली। आप झुके जाइए, दिमाग को से हाँ, अपने आप उतारे, आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। ऑटोमेटिक गियर, गाड़ी परसेप्शन आजकल आती है चेंज। ना ऑटोमेटिक गियर वाली, टोटल यस। चेंज, नहीं, टोटल चेंज, पक्की बात। जो लोग Thank you, देखो sir. आप थैंक जहाँ यू तक घूम रहे हो ना ऐसे चक्कर में चलो उठा के बाहर कहीं नहीं, चलो जी। कोर्सेज से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं एहसास। एग्जैक्टली। बुक्स में लिखा हुआ है, आजकल बुक में लिखा है चक्र जागृति। भाई मैं तो मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो तो मैं नहीं मानता। हाँ, कोई गुरु मेरे को मिल जाए जो चक्र जागृत करता हो, जिसको पता हो, मैं जरूर सीखना चाहूंगा। प्लीज, बहुत सारे गुरु आपके सामने आने वाले और आएंगे। कोई भी मेरा क्वेश्चन है, किसी को कुंडली जागृत करी हो, किसी ने चक्र जागृत कराओ, मेरी कुंडली यहाँ पर है, नीचे जाती नहीं। मैं ऊपर से नीचे ले जाता हूँ, लेकिन नीचे से ऊपर कुछ आता ही नहीं। मेरा अपना अभ्यास है। कुंडली बोलते हैं नीचे है, बट मेरी नहीं है, मेरी ऊपर ही है, पता नहीं कहाँ है। तो जो चीज है, मैं सब गुरुओं से विनम्र वो करूंगा, आग्रह कि अगर किसी को आता हो कुंडली जागृत और चक्र जागृत, मैं जो अपने हिसाब से बताऊंगा, मैंने जो जागृति सीखी है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट इज साइंटिफिक बेस्ड ऑन द फ्यूचर। मैंने जो अपना अभ्यास किया, ठीक है, तो आपको कभी बताएंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हो जिसको कि मैं कुंडली जागृत करता हूँ, कर सकता हूँ, और वो प्रॉपर झलती नहीं है, वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी निवेदन। और अगर किसी को पता हो, सर विनम सर, मैडम, और किसी को आपने जितने सुने कि किसी कुंडली जागृति हो या चक्र जागृति हो, तो प्लीज उससे मिलवाइए, मैं इमीडिएटली चला जाऊंगा विदाउट एनी वे। Thank you, sir. Thank टू नो you. इट। सर Thank मुझे you लगता for है a सर, जो भी motivational गुरु जी, lecture. जो भी योगी संत हैं सर, उनकी कहीं ना कहीं दे आर प्रैक्टिसिंग। एक निर्मला माता करके सर मैंने एक अटेंड किया था एक लेक्चर, मैं भी सर, मैंने निर्मला सबसे अनंतामयी, सहज योग वाला। हाँ यस यस। तो यस जहाँ मैम, पर जो बड़ी गिनती पर ध्यान लगवाते हैं, हाँ जी सर। हाँ तो सब किया हुआ सर मैंने। आई मैं हैव सारे अटेंडेड द माता पिता को सेशन। सुना है, किसी को छोड़ा नहीं है वैसे। अच्छा सर, हाँ सर, दैट्स व्हाई योर एक्सपीरियंस इज वास्ट एंड मैंने पहले वी सबको कैन नॉट, सुना है, देखा है। we can limit it within the 2 hours. हाँ, Yeah. So, That's the fact. so sir has a session tomorrow also with us, and thank you, Dr. Neha, for joining with us. Thank you so Thank much. you, Dr. Thank you, sir. Vichitra, again for such a wonderful motivational session of yours. आप चलो And हमारे साथ हिमालय के कहीं पर जाके वहाँ कराएंगे Sure, आपको। sure, sir. Sure, sir. पूरा We आनंद in आएगा। We person arrange will. we arrange a tour and with you, yes, sir. sir, definitely. Yes. टोटल That's good. यहाँ से लेके आपका जो नर्व कंडक्शन आपको बोले ना, प्राण का संचार, यहाँ से नीचे तक लाके तो दिखा दो, नीचे से ऊपर नहीं गया मेरे। वो जो जाएगा वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। अभी लोग वो एक्चुअली क्या है ना, वो बुक्स में दिया गया है, पर तो किसी ने उसको ना नीचे के सारे ट्रू है। यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज करके बताइए, आनंद आता है। सर सबका एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। हाँ, अभी हम गए कई जगह पर, मैं कई पहाड़ों पर और गुफाओं में घूम घाम के देखा कि कोई मुझे सिखा दे, वहां पर लोग हैं, ऐसा नहीं है, योगी हैं, ढूंढना पड़ेगा। मैं तो ऐसा ढूंढ रहा हूँ, कोई गुरु मिल जाए तो पैर छोड़ूंगी जब तक मेरे सीखूंगी। आई इज माई कोशिश है, और ये दोनों भी मेरे साथ हो, और भी लोग हैं मेरे साथ तो जाना चाहते हैं। Yes, और मैं sir. कई जगह पर गया और मैंने सीखा, ऐसी चीजों सीखी, बहुत आनंद आता है। और So ठीक है। thank you all, thank you Okay. everyone, and want to Any inform other question? everyone that we have session tomorrow also at 8 to 10 practice session, followed by 11 to 12 lecture session, and again 3 to 5 Dr. Vichitra sir will be there with us tomorrow also. कल का So- टॉपिक भी देख लेंगे, आज का टॉपिक मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा कर दिया मैंने cover। no, sir, it was wonderful. It was very Wonderful wonderful and session. very liked session, sir, for us. And very ये new मेरा thing अपना we have experience है, learned. ये तो Yes, ये तो sir. बेसिक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके आगे का तो बहुत कुछ है। You जो can मैंने आप कल के लिए एडवांस रख सकते हो। नहीं आप सर, बहुत एक्चुअली तो सर ने आज बताया ना उसका भी मैं बेस ही बता पाऊंगा। तो राइट उसके सर, लिए राइट। तो बहुत 6 महीने, 6 महीने 1 साल अभी मैं भी लगाऊंगा जी लाइन। सर आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने जो आज प्राणायाम टेक्निक जो भी सेशन बताए सर, आपने बिल्कुल यूनिक थे। फर्स्ट टाइम आई हैव स्टिल एग्जैक्टली। नहीं सर ने अलग तरीके से ट्यून बिल्कुल किए अलग तरीके से। हाँ बिल्कुल अलग तरीके से।
उसको And one पढ़िए has to और practice अभ्यास करिए, with आनंद means, आए। yeah, आपको अगर आनंद नहीं आया तो बेकार है 2 घंटे सेशन, yes. ठीक है। मैं Right. चाहूंगा Thank you फॉलो so much, sir. करिए, Thank you. सीखिए, और कोई कमी पेशी तो बताइए, हम उसको और फिल्टर करेंगे। Yes, sir. आप जो क्वेश्चन पूछिए, जो कमियां बताएंगे, उससे मैं और समझूंगा और दिमाग लगाऊंगा। Dear participant, kindly submit your response. We are still waiting. We have, ma'am, only we have got 10 responses still. So participants, you are requested to fill the form again and submit fast. We are Okay, about ma'am. to finish this session. Yeah. So we can send them. Yeah. Thank you They for have. joining. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you With so the much, sir. with the Thank you prayer, sir, all. we end the today's session. आप Yes, बस, sir. क्योंकि मेरा क्लीनिंग टाइम हो रहा है, आप बोल रहे हैं। Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Namaste, sir. Thank you for Thank you. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।